مسئلہ یہ ہے کہ پریویس جو ہو گیا ہے کل تک رات کو جو کچھ ہوا پتہ نہیں کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو قومیں میرا خیال ہے وہی ہوتی ہیں جو فیوچر کا سوچے کہ فیوچر میں اب ایسی اس طریقے کی چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو وہ آپ کو سبق کیا حاصل ہوا ہے؟ اس سارے مقصد ہے کہ یہ جو سنیریو چلا یا پیریڈ چلا ہے، چیلنج کیے گئے، بلایا گیا، گئے، پھر واپسی ہوئی، اور اس کے بعد جو مقصد ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس سے ایک عام احمدی کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو میاں صاحب ان کی چیزوں پہ نہ ٹرسٹ کرنا چاہیے نہ جانا چاہیے، کیونکہ یہ علم والی بات تو کریں گے نہیں، یہ ایسے ہی ایک تماشا سا بنائیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو سب کو آگے جو بھی سن رہا ہے ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس لیول کے نہیں ہیں کہ بندہ جائے. ایک عام آدمی ہوتا ہے نا کہ اگر علم کی بات کرنی ہے تو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ بالکل ناقابل اعتبار ہے، نہ یہ کوئی علم کی بات کریں گے. اس لیے فیوچر میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ. پتہ نہیں رات کو اس مقصد ہے کہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ان کی جو لائیوز ہیں وہ کسی کو دیکھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھے ہیں، اور کافی اچھے جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھی، اور ہماری بات بھی ہوئی تھی. تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی مقصد ہے کہ نان احمدی مسلمان ہیں، تو جو بھی کبھی بھی چیلنج کرے، تو جہاں پہ چیلنج چل رہا ہے نا یہاں تک محدود رکھیں. یعنی ٹک ٹاک کی بات ہے ٹک ٹاک تک ہی رکھیں، میرا مشورہ ہے. کیونکہ جس طرح رات کو پروپیگنڈا اور بڑے بڑے ان کے مقصد سمجھدار لوگوں نے کیا ہے نا نیگیٹو پروپیگنڈا، اپنے بچے کو بجائے دوش دینے کے، اس کی مقصد جاہلیت کو کرٹیسائز کرنے کے یا اس کو سمجھانے کے، انہوں نے فل بھرپور کوشش کیا کہ سارا مدعا وہ راشد بھائی پہ ڈال دیں. یہ تو ہم بھی چلے چاہے آف ایئر ہیں، لیکن باہر سے کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرو اسلام والے راشد بھائی ہیں. میرے ذہن میں تھا، یا مجھے ایسے لگا تھا جیسے وہ دوسرے رانا راشد صاحب ہیں یا وہ ٹرو سیکر ہے. تو یہ تو رات کو مجھے جویا صاحب نے وہ بتایا کہ یہ راشد بھائی دوسرے گئے ہیں. لیکن اوورآل وہاں جو بھی ماحول ہوا ساری ٹک ٹاک نہیں دیکھا ہے، لیکن اس ماحول کو جس طرح پیش کیا گیا نا رات 6-7 گھنٹے، تو ایک عام احمدی کو یا خاص احمدی کو یا سمجھدار احمدی کو یا میرے جیسے نان سمجھدار احمدی کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے کسی قسم کے بھی پروپیگنڈے میں مقصد جیل سازی میں نہیں آنا. ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی جماعت کے لیے یا آپ کے لیے نیگیٹو عنصر ہی ہوگا، چاہے آپ مقصد اللہ کے حضور سرخ رو ہو کے نکلیں یا مقصد ہے کہ کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے کسی بھی قسم کا. یہ ساری مقصد ہے کہ جعلی بہادریاں ہیں، یہ سب کچھ بیوقوف بنانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کے کسی قسم کے جال میں نہیں آنا چاہیے ایز اے احمدی. تو ٹھیک ہے، ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے جو یہاں پہ بات کرتا ہے، بس یہاں سے بات کی، خدا حافظ. اس کے علاوہ کوئی ضروری ہے ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم کسی کی ڈیمانڈ پہ اس کے کسی خاص پلیس پہ جائیں، کیونکہ ہم کسی خاص پلیس پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. یہ ایک موبائل کی بات ہے، موبائل پہ رہنے دیں. تو بس اتنا ہی عرض کرنا تھا، کیونکہ جو کچھ رات کو انہوں نے تصویر کشی کی ہے نا اس سارے معاملے کی، تو انہوں نے کیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چونکہ آج کل اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ ساری 4 دن کی گفتگو بھی سب کے پاس جو ان کا چل رہا تھا ریکارڈ ہے. یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ صرف جو آج ہو گیا وہی ہے، نہیں ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہر ایک کے پاس ہو جہاں سے یہ کام چلا تھا اور کس کی طرف سے چلا تھا. تو وہ تو رات کو تو بہت کچھ ہو رہا تھا، قانونی کارروائیوں کے بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی اور سارا کچھ. تو ظاہری بات ہے جب قانون میں جائے گا تو پچھلے 4-5 دن کی ساری کنورسیشن بھی اگر خدا نہ خواستہ وہاں تک بات پہنچی تو چلی جائے گی کہ کس کی طرف سے پرووکیشن تھی یا کس کی طرف سے انویٹیشن تھی. وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے
हर चीज़ पे हर कदम पे हमें सीखने का मौका मिलता है। तो अब हमें सीख जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये जो इस तरह की बढ़कें या इस तरह के चैलेंज होते हैं ना, उनके रिजल्ट, ये आज बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, क्योंकि आज तक ये फिजिकली आने जाने वाला रिजल्ट नहीं हुआ था ये मजहबी गुफ्तगुओं के। दूसरों में तो होता है वो जो मैचों मूचों में लड़कियों के साथ खेलते हैं या कोई और अब्यूजिंग लाइव्स होती हैं, वहाँ पे तो लोग आते जाते हैं, ये पत्ते खेलते हैं कि जी एड्रेस दे, पता दे, टाइम पा। लेकिन चूंकि हम सब एक दीनी गुफ्तगू करने वाले हैं, तो हमारा ये वैसे भी मजहबी माहौल के मुताबिक भी ऐसा किरदार नहीं बनता कि हम किसी गली के थड़े के मकसद है कि 2 टके के बंदे के चैलेंज पे हम उठ के चल पड़े। तो जब ऐसे करेंगे तो उसके रिजल्ट ये इस तरह के दज्जाली निकलेंगे। तो बस यही मैंने कहना था। तो सब आइंदा एहतियात करें और कोई किसी किस्म का जो चैलेंज करना है उसे उठा के नीचे मारे कि जा भाई तू जा अपना उत्ते जाके बदमाशी कर, तू दीन च बदमाशी लाया, तो ये दीन च बदमाशी नहीं होंगी, ये दलील होंगी है। तो बस इतना ही मैंने अर्ज करनी थी। 313 बराहीन आए ने, उन्होंने भी पूछ तो जज़ाकल्लाह जी, अब शुक्रिया, इजाजत दीजिए जी मियां साहब की हाल है? जारी रखिए। ठीक है यार, पहले वो भी आया बहरीन, वो पहले बहरीन साहब आए ने, उन्होंने कर दिया जल्दी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। नहीं नहीं मैं फारग ही मैं कह रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बहरीन भाई आप बोलें सर। बहरीन भाई खोलो म्यूट, फौजी साहब। अस्सलाम, एक मिनट खलो, जो आ रहे हैं एक नाम मिस्री है पागल जी। हाँ जी ठीक हो गया, वापस आ गए, बड़ी मेहरबानी। मिस्री कह रहे मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇ ਰਾਦਾ ਕਰ अरबी किसी नाम नहीं है। ये लेक भाई आवाज आ रही है? आ रही हूँ आई है, वो गंगने से आ रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा है, बड़ा रौला पाया उस्ताद जी ने, पता नहीं की किया, किसी अहमदी भाई ने को सरिया उत्थे दिता तो चीका मार रहे हैं। वो सरिया बड़ा सवाल पूछना है सी तो वो पूछना चाह रहे सन, कह रहे ने पहले थे कमेंट म्यूट कर दो अकबर साहब। मेरा म्यूट है सर जी। अकबर साहब पूछना है कमेंट कि उस्ताद जी कह रहे ने कि जी पहले जिस दिन गल हुई है वो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਲਮ ਨੇ ਆਦਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਇਬ ਰਾਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫਕਤ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। जी जवाब भाई आप इसका जवाब दें, मैं जरा यहाँ पे सिग्नल कटेंगे मेरे थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? एक यार मैं थोड़ा सा कुछ कह दूं जी ओपन भी करें बात। जी 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 देखें मैंने भी सारी सुनी है और देखी है। मुझे ये समझ आई है कि इस जो आपने सवाल किया है इसका डायरेक्टली उस दलील से जो वो देना चाहते थे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अब अगर वो मिल भी गए थे, फेस टू फेस आ ही गए थे, तो उन्होंने वो दलील क्यों नहीं दी उनको, वो क्यों अवॉइड किया उन्होंने इस चीज़ को? नहीं ये सही बात है, ये जो एतराज़ है आपका दुरुस्त एतराज़ है। फिर एंड ऑफ द डे वो मिल गए या नहीं मिले, क्या उन्होंने दलील दी या नहीं दी? नहीं, तो हम इस वक्त यही कर रहे हैं। देखें वो एक नॉर्मल से बंदे हैं दोनों ही, वो भी चैलेंज किया, वो गए, ठीक है, जो काम था वो नहीं हुआ। हमारी तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने मिलने की, वो मिल भी लिए, फेस टू फेस नजर भी आ गए, आगे क्यों नहीं हुआ काम? मतलब वो बिला वजह वो बुला रहे थे, उन्होंने टाइम भी वेस्ट किया ना उनका। अब ये कहना कि उन्होंने पहले कहा था मैं नहीं आऊंगा, फिर वो आ गए, अगर वो आ गए तो मिल भी गए अगर, तो फिर इसमें क्यों कहानियां क्यों बन रही हैं? ये सवाल उठ भी रहा है ना, जो ये सिर्फ इसलिए उठ रहा है क्योंकि काम होना चाहिए, वो एतराज करेंगे आपके ऊपर। लेकिन बस मेरा ये, मैं कहता हूँ उन्होंने दलील नहीं दी, बल्कि उनके तो रंग जो है वो उड़ गया। सवाल ये है क्या उन्होंने तस्दीक की थी कि हम मुलाकात करेंगे, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उन्होंने जो है
ابراہیم کلام بھائی چینج کیا اپنا اور اس کے برعکس وہ ادھر پہنچے. ہاں بس اس کا جواہر نامہ جواب دے کے ابراہیم کام بھائی ختم دے. دیکھیں جو پلان پہلے جو دو ملاقاتیں تھی بیسیکلی. پہلی جو ملاقات تھی اس کے اندر وہ آئے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جو راشد بھائی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم اگر آپ بلاؤ گے تو تمہیں وہاں سے اجازت نامہ لانا پڑے گا جس بھی مولوی سے تم بات کرا رہے ہو. لیکن یہ اینڈ پہ جب ٹیوزڈے کو 5 PM پہ ملے ہیں تو ملنے سے پہلے دونوں لائیو پہ تھے. دونوں ٹک ٹاک کی لائیو پہ تھے اور دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. وہ جب پہنچا ہے تو شعیب راجہ اور پھر اس نے پوچھا تم کدھر ہو. وہ ساری ریکارڈنگ سب نے دیکھی ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور ایک اتفاق سے مل لیا ہے. وہ 5 بجے کا جو ٹائم تھا اس میں وہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ تھے. وہ دونوں جب ملے ہیں تو وہ باہر جا کے اس نے گاڑی کے پاس جا کے سب کو آن لائیو دکھایا کہ دیکھیں جی آ گیا ہے. تو اور وہ پہلے ویٹ کر رہا تھا کہ آ رہا ہے کیونکہ جواد بھائی وہ جو ویڈیو دیکھی وہ تو آپ نے بھی دیکھ لی میں نے بھی دیکھ لی. بس سوال میرا یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیز کی تصدیق ہو گئی تھی کہ بھائی اس دن ہم جو ہے ٹیوزڈے کے دن جو ہے مل لیں گے, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بیان چینج کیا گیا کہ بھائی میجر سیکورٹی تھریٹ ہے میں نہیں آ میرا سکتا. بھائی جواد بھائی آپ اس بات پہ فوکس کیجئے جو جواد بھائی نے بات کی ہے کہ راشد بھائی سے پہلے یہ شعیب راجہ وہاں پہنچا ہوا تھا, اس نے لائیو آن کی تھی. اب آپ سے کہ وہ آ رہا ہے. کہ وہ نہیں سنیں میری بات, وہ یہ کہہ رہا ہے کتھے گیا انہیں تے آنا سی, وہ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ویٹ کر رہا, وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے, وہ کتھے ہوئے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آیا تھا تو انہوں کسی نے خط پایا سے اتنے بہ کے جا کے اتنے انتظار کرو تھا. یہ ذرا مجھے تھوڑا سا بتا دیں. بہت شکریہ. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ٹیوزڈے والے دن دونوں پارٹی کہتی ہیں کہ تصدیق ہوگی ہم ملیں گے. پھر جو ہے سر وہ وہ راشد بات بھائی ہی کہتے چھوڑ ہیں دیں. سیکورٹی میں نے تھریٹ ہے. دیکھیں میں ابراہیم کہتا بھائی ہوں بیچ میں نہیں بہت ہوئی ساری بات. باتیں ہوئی ہیں لیکن میں فائنلی بیچ ملنے میں کی بات ہو گئی تھی. ہاں جو ایک بات میں آپ سے دیکھیں آپ سمجھدار ہیں, میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ راشد صاحب سے پہلے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے لائیو آن کر کے پارکنگ لاٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ کیمرہ آن کیا ہوا ہے اور وہاں پہ ہنسی ٹھٹھا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ کتنے گیا تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. میں تو ادھے گھنٹے تو تیرا انتظار کرنا وا پیا. مینوں اس گل کا جواب دیو کہ اے انہوں خواب آئی سی کہ انہیں ادھے گھنٹے چ آنا ہے یا آدھا گھنٹہ لیٹ انہیں آنا سی. میں اٹ ہیپن ٹو بی کہ وہ اتنے آلریڈی بیٹھے ہوئے سی اور انہیں پھر لائیو جیسا بھی آن تسی کی اور اس ٹاپک تے آپ ہی کی کہہ رہے کہ کہ ادھا آخری گھنٹہ ٹائم لیٹ جو ہے. ہوتے ہیں انہوں نے رابطہ کیتا ہے ایک دوسرے کے نال تو آخری مل ٹائم گئے سے نہیں. مراد یہ نہیں سر ہے کہ میں 5 کہنا منٹ نہیں پہلے. کیتا. سر ایک منٹ میں کہنا کشف ہویا الہام ہویا انہوں کچھ بھی ہویا پھر راشد بھائی پہنچ بھی گئے نے. مینوں تسی یہ دسو کہ انہوں الہام ہویا سی کہ راشد بھائی نے آنا ہے یا وہ لیٹ نے, وہ کیوں لیٹ نے, میں تے ادھے گھنٹے تو اتنے انتظار کر رہا. اے انہوں اے جڑی کیفیت ਉਹਦੇ ਚ تاری ہوئی ہے جڑی انہیں لائیو آن کر کے بول رہا سی یہ کیوں بول رہا سی تسی مینوں دسو. میں نہیں ساڈے کولوں بیانات بعد وچوں لیا جائے. نہیں ٹھیک ہو گیا وہ تو تھوڑی دیر پہلے کی گئی بھائی نے تصدیق کی تھی کہ آخری ٹائم جو ہوتے دو بھی لائف کے ہوتے سن پھر اسی موجود سن دوجیاں گلاں رابطے چ دے جاندے رہے ہی نے. نہیں نا, دوجیاں گلاں چ جاندے ہی نہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میں تانوں یہ کہہ رہا کہ ہی واز ویٹنگ فار ہم, کہ طے ہو ہی گیا. سپوز ٹو میٹ آؤٹ دیئر اور اوتھے انہاں دی ملاقات ہوئی ہے. ہی ٹک ہم ان سائڈ آف دا ماسک. انہاں دی اوتھے جا کے نہ جتیاں لائیاں نے, اندر کھلوتے نے. مولوی صاحب نال 15 تو 18 منٹ اس بندے نے گل کیتی ہے. مولوی صاحب نے ہاتھ پیر جوڑ کے متھے تے ہاتھ مار کے انہاں نوں کڈ دتا باہر. اے وے گل ٹھیک ہو گیا. ایدے اوتے گل کرو. ہاں جی. ہن اگے پیچھے دی گل کرن دا وچوں کلوز کڈن دا, ہن ہر وکیل وچوں ہر چیز وچوں کوئی نہ کوئی کلوز کڈ لیندا. نہیں وہ ایدے وہ نال کٹن کی گے فرق آنے ہوندا والے ہے. دن بہرین بھائی اور کلاس نکلیں گے. بہرین بھائی میں تانوں نا 3 ویڈیو نے وہ تانوں سینڈ بھی کر دینا, تسی ویکھ لینا. باقی اے جڑے گل کر رہے نے نا کل ٹھیک برار دے تے میں بھی بیٹھا سی اور یہ شعیب راجہ لائیو برار تے گل کر رہے سی بار بار کہ کتنے تہاڈا راشد ٹائم دے کے آئے, ادھا گھنٹے تو ویٹ کر رہے ہیں, ادھے گھنٹے تو ویٹ کر رہے ہیں کتنے بندہ. حالانکہ جہاں ٹائم سی اور راشد صاحب اس ٹائم تے اور وہ ویڈیو کال کر کے وہ بھی پوچھ رہے ہیں. وہ ساری ویڈیو میں تانوں سینڈ کر دیکھ لینا. میں تو ویکھی ہے سویر دی چل رہی ہے نا, وہ تو ویکھی ہے ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی کہدا وچوں کٹی کٹا کی نکلدا نیری لڑائی ہے پنڈی پائی ہے ٹھیک ہے نا. نہ وہ کوئی انہوں کو تمیز سی تے نال کی کہدا وہ لے کے نسریا تے ٹھیک ہے انہوں کہ وہ اتنے تے بندے مارن آیا. تے میں ہی کہاں گا کہ واقعی جڑے تھوڑے دیر پہلے بھائی گل کر رہے سن انہوں کی کہدا تے ٹک ٹاک دی حد تک رکھو اپنی سیفٹی سے, اپنے بچوں کی سیفٹی سے.
ਇਕੱਠਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ अच्छा है अली अकबर भाई मैं माजरत चाहना, अली अकबर भाई मैं माजरत चाहना, एक सेकंड। बहरैन भाई मेरी बात सुनिए, आप माशाल्लाह माकूल इंसान है, मुझे आपसे एक अच्छी बात की तवक्को है कि आप एक इंसाफ से काम लेंगे। इंशाल्लाह कोशिश आपसे जरूर करेंगे। इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, आपने दोनों तरफैन की बात सुनी होगी और माशाल्लाह आप अपना तज्जिया भी रखते होंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपको कितनी को कहानी का पता है, उतना स्याको सबाक मुझे छोटा सा आप बता दें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने शुरू किया और कहाँ जाके एंड हुआ। आपकी अपना वर्जन जो है, आप ये ना कहिएगा कि आप लोगों का वर्जन नहीं आया, आप अपना वर्जन बयान कर दें, कोई ऐसा मसला ठीक नहीं है है। बेटे, हम भाईजान जो आपकी मेरी- आराम से बात सुनते ठीक। हैं जी, बात करें। ठीक हो गया। देखिए जितनी बात मेरी समझ में आई है, सबसे पहले तो एक हवाले का मुतालबा किया गया, तो शेब राजा साहब ने बड़क मारी जी आप मेरे सामने फिजिकली है ना, मैं हवाला आपको दे देता हूँ। वो मेरे ख्याल से अगर वो किसी दिन वो गए भी हैं उस दिन, तो उधर वो मौजूद नहीं थे शेब साहब। उसके बाद दोबारा जब दूसरी दफा कार्रवाई हुई वो आपके सामने, ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ में उधर उनका कोई निज़ाम था ही नहीं, तो उनकी जाने की किसी को बुलाना नहीं चाहिए था, और अगर वो चले भी गए तो हवाला दे देना चाहिए था। दोनों में से कोई काम नहीं हो सके, ठीक है, नीरी लड़ाई थी और इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो भाई इधर पहुंच भी गए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, कोई साथ में चीज़ रखते भी हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। ये लोग तो असला लेके बारूद लेके हर चीज़ घूमते हैं, तो फिर उनको किस चीज़ का खौफ था कि अगर वो साथ में जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ लेके भी गए। इतनी सी बात है। हवाला देना था, अगर हवाला है आपके पास तो आप इधर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन भी नहीं दे सकते, आपने कहा कि फिजिकली आ जाएं, तो उनको फिजिकली वहाँ पे आप मिले ही नहीं। दूसरी दफ़ा जब आप मिलें तो उस टाइम ही दे देते, उस टाइम भी खाली लड़ाई डाली है, और लड़ाई के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आई। आप बिस्मिल्लाह करें, इससे ज़्यादा कुछ अगर आपके पास मालूमात है तो भी दे दें। जी जो ये साहब आ गई समझ मुझे बड़ा काइंड हार्टेड साहब ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ है तो कह दो। मैं तो कहूंगा यार, काइन हार्टेड भाई ने भी सारा मामला सुना है, ओपन आइज भाई ने भी सारा मामला सुना है। अब आपने बहरीन भाई की भी बात सुनी है, आप अपनी बात कीजिए कि आपको अगर बहरीन भाई को कुछ और बताना है, आप थोड़ा सा जितना आपको समझ में आया आप अपने हिसाब से प्लीज बताइए। बहुत शुक्रिया, हम सुन रहे हैं। अपने हिसाब से तो मैं मतलब मुझे कोई कहता तो मैं तो कभी मतलब ना जाता, ना इस बेवकूफ़ी में पड़ता, ना लोगों की बातों में आता कि मुझे शेर बनना है, शेर बनना है। लोगों ने मुझे शेर शेर कह के लड़ा दो और बलि चढ़ा दो, तो लोगों की ये बेवकूफ़ियों में जो घिर जाता है वो तो बेवकूफ़ी है। जो हाँ उस बेवकूफ़ी में कोई गिर गया कि हाँ जी लोग की मैंने शेर कान के, इस तरह कराची के लड़के बहुत करते हैं कि दोस्त यार ना यार तू कर ना, तू कर तू कर तू कर, और जब वो चढ़ जाता है सारे पीछे मुड़ जाते हैं। तो बलि चढ़ाई है उसकी सीधी सीधी, वो बलि चढ़ गया और खुद की ईगो की बलि चढ़ गया कि मैं शेर बनना हुआ। वो पेंडू वाली बातें चीज़ों की ना, अलबत्ता मेरा तो यही रवैया इस चीज़ों में। तो यार बलि तो नहीं चढ़ा, वो गया है, वो गया है, बलि तो नहीं चढ़ा, वो गया है, वो आगे किसी ने कुछ किया ही क्यों नहीं बताया यार ही उसको भाई पुलिस केस बन गया उसके ऊपर जी ओपन आइज भाई तो उसके ऊपर केस चले बन गया। अब जज़ाकल्लाह अपना काइन हार्टेड भाई, बहुत शुक्रिया आपने। चले इस तरह देखी, बात यह है आपका एक ये तज्जिया है, दूसरा देखने के बाद आपका जो तज्जिया, लड़का नहीं जाना चाहिए था चला गया है। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे इसके ऊपर ये पुलिस केस बनता है? बनता है यार, बनता है, बेवकूफ़ी है तो बनता है। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और कौन दोस्त है? ओपन आइज भाई आपने अगर कुछ कहना है तो कह ले। एक मिनट होगा इसके बाद ये राणा साहब साहब एक को मिनट टाइम देते हैं, राणा साहब देते हैं आपको टाइम। मैंने सिर्फ इतना ही कहना था यार, काइंड हार्टेड साहब, बात यह है कि केस बन गया है या नहीं बना, इसकी भी बात अभी नहीं हो रही है। अगर केस पता नहीं है कहाँ सुन के आ गया केस बन गया, तो किसी भी चीज़ का केस बन सकता है। आप कोई भी कंप्लेन करो तो कंप्लेन तो की जा सकती है ना, उन्होंने कर दी कंप्लेन तो ठीक है, इसमें हम ये थोड़ी कहेंगे वो मुलजिम बन गया। अभी देखते हैं, गिल्टी तो नहीं है ना वो। एनीवेज राणा साहब, अच्छा इससे पहले राणा जी, साहब ओपन मैं यार भाई। माजरत यार मसला है वे यार जोया भाई आप 2 करनी- घंटे से बोल रहे हैं सर, 1 मिनट तो दे दे सर। हाँ जी, क्या हो एक गया? सेकंड। इधर ही सारा यहाँ पे सारा केस की सारा हाँ जी, वाकई आप कर इधर ही दीजिएगा, आपको। मैं चुप करके सुनूंगा आपकी बात। वो केस की बात ओपन आइज एक्सप्लेन भाई, कर दें जोया साहब, फिर हाँ राणा जी। साहब आप कर लें। पहले मैं जोया आपको साहब आप बता बता देता हूँ, केस की जहां तक बात हुई ना, हमारे पास सबूत पड़े हैं। कालों को बुलाने का, अपनी क्रिकेट टीम को बुलाने का, ये भी सारा मामला है। जदों फिर सानू इस पेंडे टुरना पिया ते वो भी मैं तुहानू दस दवां, एडी को बड़ी गल नहीं है। एनीवेज चलें जी, आप बात करें जी राणा साहब। जी बहुत शुक्रिया।
अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि सारा जो मैंने दोनों वीडियो देखी हैं आपकी भी, तकरीबन जो आपने चलाई, आपने तो वही चलाई जब वो शुएब राजा इमाम साहब के पास चला गया और वो टाइम मिल गया उसे, और उसने अपना मुंह ढांपा होता है। तो शुएब पूछते हैं कि क्या हाल है, किधर है, कौन हो आप, ठीक है। तो वो बात होने लगती है, वो अंदर मस्जिद में आते हैं। तो इसी तरह वो अपने जो दूसरे भाई हैं वो पूछते हैं कि जनाब आपका तारफ़ क्या है, आप अपना कुछ दिखाएं, आप वही बंदे हैं जिनके साथ हमारा मुनाजरा होना है। तो वो कहता है आपने बहन का रिश्ता देना है, वो मस्जिद में खड़ा होके। फिर अगर असूलों पे बात करनी है तो मेरा भाई असूलों पे बात करें। मस्जिद में खड़ा होके, उन बंदों ने अभी तक कोई गाली नहीं दी उसे, ठीक है। इस बंदे ने गाली दी है मस्जिद में खड़े होके। ये आपकी तलीम, तकद्दस, एहतराम सब आपका वाज़िया हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर वो इमाम साहब ने जब ये झगड़ा देखा तो इमाम साहब ने बुलाया अपनी तरफ शुएब को, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और शुएब ने भी बहुत अच्छा किया कि ना आगे से उसे रिस्पॉन्ड किया कि एक बंदा जब जेब में सरिया लेके आएगा और कहेगा जी, और मस्जिद में भी सरिया लेके चला जाएगा, ठीक है, तो ये इखलाकी तौर पर कंडेम करते हैं। और जनाब एक उसने टाइम जो रखा, वो पहले टाइम उसने मना किया, एंड तक मना करता रहा जी आप मुझे पहले तहफ़्फ़ुज़ लेके दें, बाद में 10 मिनट पहले आप बुराड़ लगा के कहते हैं जी हम सरप्राइज़ देंगे। ये शेमफुल चीज़ें हैं, इनसे आप अपनी शेर ना बने, ये आपके लिए अच्छा नहीं है मेरा भाई। जी जी, कर रहा है कि बात, या मैं बात कर लूं? जो ये साहब कौन मॉडरेट कर रहा है? ये मॉडरेट अली अकबर भाई कर रहे हैं, आप बात अली करें। अकबर मुझे कर रहे हैं, कॉल आ गई थी भाई की, मैं ठीक पूरी है। बात नहीं सुन अली सका, अकबर भाई लेकिन की आप करें इजाजत के बात। बगैर तो नहीं ना करनी। अली अकबर भाई इजाजत दें, फिर जी बात जी कीजिए। कर लें मोहम्मद सैन साहब, कर लें। हाँ, बहुत अच्छा। ये सुनी है पहले तो, वाकया नहीं पता चला, लेकिन अब तफसील से सब दोस्तों ने वो सुनाया और वो वीडियोस देखी। वो ये हमारे जो भाई गए थे, बेहतरीन इन्होंने काम किया है। ये एक मसीह के शेर थे, ये बिल्कुल ही सरिया सरिया ये जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल घुसे हैं इनके कैंपों में और ललकारा है उन्होंने। मजाल है ये खत्म नबूवत के मुजाहिद कोई आके उनके मुंह पे खड़े होके उस शेर के सामने ये भी गुस्ताखी कर पाते, या इन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं जो टिकटॉक पे की हैं। बिल्कुल नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं हुई इनकी। वो बिल्कुल शेर थे, और शेरां दे बच्चे शेर, शेरों के मानने वाले भी शेर। वो शेर शी जवान वो घुसा है जाके, और उसने बताया कि हाँ भी मैं आ गया हूँ, करो बात अब। तो इनके इमाम साहब भी घबरा गए, और वो जो मसूफ सुहेब राजा साहब हैं, उनकी भी आवाज में खौफ आ गया। तो ये कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि मजा आया देख के। हमारे शेर ने जाके इन गीदड़ों के मुंह बंद कर दिए हैं, और अगली दफा भी ऐसे ही होना चाहिए। जब भी ये धमकियां लगाते हैं, बदमाशी करते हैं ये, तो इनको इसी तरह जवाब देना चाहिए जैसे इस शेर ने जवाब दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस शेर को, बल्कि मैं इत्तेफाक करता इनके हूँ जनाब जितने। आपकी बात से। अच्छा, अभी तो आपकी और बातें कर रहे थे, अभी आपको मेरी बात नहीं से नहीं, जो इत्तेफाक है। आपने कहा ना कि मुजाहिदीन ने आगे से कुछ नहीं कहा, मैं आपकी सारे बातों से मोहम्मद जनाब, हुसैन यही तो साहब, बात मेरी होती है। मोहम्मद हुसैन इतने भाई, जोगे होते तो उधर वो शेर को कुछ क्या के बताते ना, मोहम्मद हुसैन उधर भाई, आपसे बोला नहीं गया। आज अलीम भाई मेरी बात सुनिए। मैं एक जी छोटी जी सी अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं मस्जिद के अंदर खड़े होके गाली दी, रिश्तों के मामले होते हैं। ये प्राइवेट मैटर है कि आप किसी के मुंह से नकाब उतारना चाहते हैं और उससे आईडी मांग रहे हैं। आप आईडी किस चीज कॉप्स की मांग आईडी सकता है। मांगनी है? ये किस चीज आईडी की आईडी इनको चाहिए? उसने कहा है कि मैं लाइव हूँ अपनी आईडी से, मैं ही हूँ, तू मुझे बात कर। कहता है कि कोई जी आईडी नहीं तू चाहिए। आईडी दिखा मुझे। उसने फिर कहा है कि तू जेड़ा रिश्ता देना ना दे, तू मैनू दलील दे। हाँ, नहीं वो और दूसरी देने ही एक दलील गया था अब इनका। किसने अब किसने बात कहा है सुनिए। दलील दें? जो ये सब किसने कहा है खलो दलील जो दें? खलो जो मैं तुहानू दसना वा, झूठ यार, मैं सारी अस्तगफुरुल्लाह, मेरे और आप लोगों का ना प्रॉब्लम यह है कि आप बोगस में वीडियोस देखते हैं, वहां पे अस्तगफुरुल्लाह। मुतालबा जो ये बार सब बार कम से किया कम गया है। बंदों में बैठ के तो जुड़ना। मुतालबा बार बार किया गया, होल्ड करें। दूसरी, एक मिनट, दूसरी बात आपको मोहम्मद हुसैन साहब मैं ये समझा दूं या बता दूं, ये जो कह रहे हैं मैं मस्जिद बोला का तकद्दुस, सुनने आप भाई बात सुने, मेरी बात सुन। एक वीक पहले वहां पे इन्हीं की मस्जिद के मुसलमान लड़े और कुछ सुनने मुक्के लत्ते सारा कुछ चला है उस मस्जिद के अंदर, ठीक है।
आपको अगर नहीं पता तो वो तो मीडिया बिल्कुल में पड़ी हुई है सारी हाँ, बातें। नहीं, आपके बिल्कुल बंदे ने भी मैं ठीक तो किया है, यार ये कहना अब चाहते बात हैं ये आपके है बंदे ने ठीक किया है। मेरी ओए बात राना ये साहब है रुक कि जाओ, वहां आपने का बात तो कर ली मजा हुई है, रुक जाओ और राना वहां साहब, आपकी बारी नहीं है, हाँ मैंने आज बात इन्होंने करने जब दो बात जज की साहब हमने को। चुप करके सुनी है इनकी बात, हमने कुछ नहीं हाँ कहा इनको, ठीक है। अब बात सुननी पड़ेगी ना इनको। और वहां पे तकद्दुस की जहां तक बात है, आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। काइंड हार्टेड भाई ने और ओपन आइज ने और अली अकबर बात साहब ने सुनी है कि हमारा लड़का अंदर खड़े होके दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और उसने हम्म बार बार दुरूद शरीफ का विर्द किया वहां पे, वो तो इनको नजर नहीं आया। अब रिश्ते की बात जहां तक उसने को माँ बहन की गाली नहीं दी, उन्हें क्या नहीं यार तू जड़ा रिश्ता देना ना दे, ये रिश्ते लेने लेने वाली बात होती है, केड़ी बड़ी गल है। अब उसने अगर मस्जिद में खड़े होकर कहा कि रिश्ता ना दे, मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ कोई रिश्ता विश्ता, मुझे दलील ही चाहिए। बार बार हम्म उस वीडियो के अंदर मुतालबा किया गया है कि हाँ भाई किथे वे, हाँ क्यों बुलाया सी मैनू, हाँ जी तुहाडे मौलवी साहब ने तुहानू बाहर कट दिता है, मैं किथे वे दलील। ये ओपन आइज से पूछ लें कि बार बार इस चीज का मुतालबा किया गया उस बंदे से। अब ये उसके ऊपर अगर ये दजल करेंगे तो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस बंदे ने बिल्कुल वहां खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, हमने उसके साथ मिलके पढ़ा है, हमने तो नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया है, ठीक है। हमारी ब्रॉड के ऊपर जो माहौल था वो आप सुन लें, हमारी तरफ की रिकॉर्डिंग मैं आपको खुद पर्सनली भेज दूंगा, और हमारा जी रवैया क्या था और इनकी तरफ का जो रवैया था वो आप देख लें। इनमें से किसी एक ने भी इस तरह का रवैया जमाते अहमदिया वाला इख्तियार किया हो तो मुझे बता दें। बिल्कुल ये ओपन आइज ने बिल्कुल पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, इनसे पूछे गैर इखलाकी हमारी ब्रॉड के ऊपर बैठे बंदे ने भी एक भी बात की हो तो मुझे बता दें। जैसे ही किसी ने कोई इस तरह की नरम सी बात करने की कोशिश की, हमने उसी वक्त कहा नहीं नहीं, और करने ही नहीं दी। पूछ लें ओपन आइज भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब अब आप लोगों ने दूसरी अगर बात ये है कि ये जो वेपन कह रहे हैं, कोई लड़का कोई वेपन ले गया है, पहली बात ये है कि ये कहाँ पे कोई उसने और ऐसा गलत निक्का काम जा किया है। डंडा उन्हें निक्का नहीं जा नहीं डंडा कोई बोझे कुछ च भी पाया नहीं सी, है, वो मैं कहता बोझा अगर भी वो होता बेचारे का। तलवार भी हाँ लेके जाता फिर भी गलत नहीं था, नहीं वो लेके नहीं गए ना, पर बात ये लेकिन है कि छोटा उसने जा कोई डंडा उन्हें इस्तेमाल बोझे च किया है, पाया सी। कोई नहीं मैंने ये कुछ नहीं कहा, है। सुने रॉकेट सुने लॉन्चर मुझे लेके जाता, रॉकेट मेरे लॉन्चर लेके भाई जाता, भाई क्योंकि अल्लाह जमात का माफ करे यही जी। क्या करते हो अब आप जमात लोग, का अच्छा यही जब एक मिनट तरस है। बदमाशियां चलती है एक राणा साहब, मिनट एक तो बोलते हो बीच में, अली जब आपकी अकबर भाई, बदमाशियां चलती हैं, अली आप अकबर लोग भाई डंडे सोटे मारते हो पाकिस्तान में, तो इधर तो वो लड़के ने जाके, दलेर आदमी ने जाके सिर्फ आपसे दलील मांगी है, ललकारा है, वो उसको दोबारा जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कोई डंडा नहीं, मैं उसको आपको तलवार लेके जानी चाहिए। इसी मस्जिद का पोस्टर दिखाता हूँ। उधर बाकी मुसलमान भाई ने पकड़ा हुआ हाथ में पोस्टर, वो कहता है कि आई एम आ मुस्लिम, आई एम नॉट आइसिस। ये उसने पोस्टर लगाया जो वीक पहले इनकी लड़ाई हुई है, जो नेबरहुड में हुआ है। तो राशिद भाई तो गए, उन्होंने जाके कहा माय नेम इज राशिद एंड आई एम एन अहमदी मुस्लिम। ये फर्क है आपका, वो आपकी मस्जिद में खड़े होकर कह गए कि मैं अहमदी मुसलमान हूँ। नहीं उसने आप ठीक लोगों किया, को मस्जिद में आप सरिया ये लेके बात गया है, कर रहे उसने हो बड़ा कि ठीक किया है, आप ये बात बड़ा कर रहे हो ठीक कि आप ये कह रहे हो कि वहां पे ग्रेनेड लेकर जाना चाहिए था। वो तो आप लोगों को करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को सारे वहां पे आईसिस समझते हैं। किया। आप माँ लोगों को बहन की पोस्टर गालियां उठा के दी हैं, खड़े बड़ा होना अच्छा पड़ता किया है। उसने। कोई ये अल्लाह जमात की माफ तालीम करे, है, कोई माँ बहन ये की जमात गाली की नहीं दी, तालीम है, तुम्हारा रिश्ता ठुकराया है, तुम्हारा रिश्ता ये ठुकराया है, जमात कोई गाली नहीं दी, की तालीम तुम्हारा है, रिश्ता ठुकराया है, लोगों से तुम्हारा रिश्ता ठुकराया, ये कोई गाली नहीं दी, ये गाली जमात नहीं की दी, तुम्हारा तालीम है। रिश्ता यही अलीम ठुकराया साहब है। कह रहे हैं, बड़ी आप अच्छी बात लोगों है से अलीम साहब दलील ने मांगी की है, तो आप कि लोगों से उसे दलील मांगी सरिया है, नहीं तुम्हारा तलवार रिश्ता लेके ठुकराया जानी है। चाहिए और थी। ये हमारा मैं हक कहता है हूँ रिश्ता रॉकेट लॉन्चर ठुकराना, लेके जाना चाहिए हमारा था, हक है रिश्ता रॉकेट ठुकराना। लॉन्चर, तुम लोग पोस्टर लेके ठीक है। खड़े हो, हम जमात आईसिस की नहीं तालीम है। ही ये है, तुम लोग पोस्टर जमात की लेके खड़े तालीम हो, ही हम ये है। लोग आईसिस नहीं तो है। लोगों से तुम माओ लोग बहनों पोस्टर के लेके रिश्ते खड़े हो, मांगो, हम लोग खड़े आईसिस होके नहीं है। मस्जिदों में, ये ठीक तुम्हारी है, औकात है कि तुम लोगों को गालियां दो, मनवाना पड़ता है। ठीक क्या है, मुसलमान है? झूठ बोलो। टेररिस्ट, आई एम अ इधर मुस्लिम, अब मैं आना नहीं चाहता, मैं आना नहीं चाहता, मैं आना नहीं चाहता, मुझे पहले सिक्योरिटी दी जाए, मेरा नाम मुझे ये है, सिक्योरिटी आई एम दी एन जाए, अहमदी मैं आना नहीं मुसलमान। चाहता। शेर सीधे गल्ला जो होता ये टट्टू को लेके जो ये गया तेरा सी। गिद्दड़ मौलवी साहब नजर आया ने गिद्दड़ मौलवी तेरा। साहब को जाके तरले क्यों करता रहा है? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਪੁੱਛ ਲੋ ਬਗੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਭੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੱਜ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਰ। बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जो दलेरी उस लड़के ने करके दिखाई है वो काबिले तारीफ है। ये बदमाशी करते हैं, शुरू से करते हैं, पाकिस्तान वाला साहब समझते हैं। तो वो लड़के ने इस चीज ये तोड़ा है। उसने बताया है कि मैं अकेला जा सकता हूँ। जो सीधी बात है वो माननी चाहिए, जो दाद बनती है वो लड़के को बिल्कुल देनी चाहिए। दलेरी का काम किया उसने, और उसने बिल्कुल बताया है कि भाई ये धमकियां पाकिस्तान में देते हो। जब कानून की हुक्मरानी होती है तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि कैमरा खोले कोई कहे इधर आ भाई देख लेने तेनू, इधर आ। ऐसा भाई कुछ नहीं होता। वो लड़के ने साबित किया, बिल्कुल ठीक किया है। और दोबारा ये बुलाएं, दोबारा जाना चाहिए इसको, और ऐसे ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक किया काम उसने जी। करें जी बात, मैंने तो इतनी बात करनी थी, दाद देनी थी, वो मैंने दी है बस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ओपन आइज क्या हाल है? ठीक हो? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਓਪਨ ਆइज की हाल है? ठीक हो? अच्छा यार देखें, बात जो भी है, लेकिन है कि दोनों तरफ की वीडियोस जो उनसे देखी, अमन नज़ीर भाई और उन्होंने जो लगाई है वो भी, और जो आप लोगों ने भी लगाई है। लेकिन बात जस्ट ये है कि लड़के की जो ज़िंदगी है उसको डेंजर्स में डाला गया है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, दलाइल की बात आती, बहुत बात की बात। ओ भाईजान कोई नहीं डेंजरस में डाला यार। जो ये भाई ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। वो बात तो कर लेने दे। ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਬੁਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ पे लाना सी। एक मिनट चुप करना। ओ भाईजान किसी और को बात कर लेने दे। ओए आप लोग 3 घंटे से बैठे हो, तुम में से कोई मर्द का बच्चा कोई सीधी हुसैन अच्छी भाई क्या हाल बात है करने आपका? के लिए नहीं आता। अच्छा जो ये भी बात तो सुनिए। मोहम्मद हुसैन भाई क्या हाल है आपका? जी उस्मान भाई बस मुझे 1 मिनट से चाहिए। निशान भी 1 डेंजरस मिनट रुकना। इसलिए कि आपके घर गया था इसलिए डेंजरस हो गया वो बंदा। नहीं मेरी बड़ी जरूरी बात है, मैं डेंजर में क्लास में चली गई बैठा है। था। आप लोगों ने बुलाया, आपके घर गया, वो डेंजरस हो गई उसकी जिंदगी। ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई बताओ क्या बात है। देखिए लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, और जहाँ तक इमाम मस्जिद साहब ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। क्यों लड़ाई झगड़ा? वो तो करने, वो तो दलील लेने गया था, वो तो लड़ाई करने ही नहीं गया था। आप लोगों ने करनी थी लड़ाई। राड भी था ना, राड भी हाथ में था ना, ये दलील थोड़ी राड कोई नहीं दिखाया भाई, वो उसके नीचे चरणों में जाके उसने देखा है। राड उसने दिखाया कोई नहीं है। वो ओदे थल्ले बड़े है, ओदे गोटियां च वड़ के उन्हें देखे है। सामने नजर आ रहा है वीडियो। उसने नहीं दिखाया। हाँ, उसने नहीं दिखाया जनाब, गलत बात कर रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूं आपको, उसको कैसे नजर आया? रोत भाई 1 मिनट ठहरे। जोया भाई 1 मिनट। हाँ जी, वो लेके गया स्टिक, तो इसमें इस्लाम में मना है कि मस्जिद में स्टिक नहीं लेके जा सकते। बात ही तो बात दलाइल के ऊपर। हाँ बात क्या है? चीजें नहीं लेके क्या बात है? बता जिशान भाई 1 मिनट नहीं रुकना। जा सकते? जिशान भाई प्लीज। हाँ, आपस में छोटी सी फैसला कर बात लो करनी किसने है। बात करनी है। आप में से ज्यादा इस्लाम की तलीम का किसको पता है दोनों में से? एक छोटी सी बात करनी है मैंने यार मोहम्मद हुसैन भाई हाँ से छोटी करनी सी है, कर। please यार। हाँ नहीं, मेरे से पहले कर लेना जो मैंने पूछा है। 1 मिनट मोहम्मद हुसैन भाई 1 मिनट। जो मुझे ये बताएं कि कुरान शरीफ में सर जी मैंने इनसे या बात करनी हदीस है, में खुदा का कहाँ वास्ता लिखा जी है? किसी और हाँ सुन मैं लेता बताता हूँ, 1 मिनट ठहरो ना, ठहर जो, मेरी जिंद जानी है, ठहर जो। हाँ मैं पहले ये ज़िशान साहब को जो है ना, इनको मैं बता दूं, मुझे कुरान शरीफ या हदीस में से कोई हवाला पेश करें कि मस्जिद में जो है वो स्टिक लेके जाना नजायज़ है। अच्छा पहली बात है, आप हौसला रखिएगा सुनने के लिए। ठीक है ना, प्रॉब्लम सिर्फ ये हौसला नहीं होता ना बंदे के हाँ पास। हवाला देना है। जिशान भाई मुझे इसके सवाल का कहानी जवाब शरीफ दो नहीं यार, करानी। छोड़ो प्लीज यार, मुझे मोहम्मद हुसैन भाई हाँ से ये छोटी सी सवाल का बात जवाब करनी ना है, दो, बात करने दो यार। क्योंकि इस्लाम की बात हो रही है। अच्छा ठहर जाए कमालात भाई। हाँ कर आप कर। एज के साथ साथ इंसान हाइपर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ आपको मेरी एज का कहाँ से जब पता? आप लोग सुन मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। सुन लिया करें। हाँ बता ये दे। वाली है कि जब आप लोग दलील गए थे और ऊपर से आप लोग ये कह रहे हैं कि यूएस है, अमेरिका है, ठीक है ना, यहाँ पर तो ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो
تو جب آپ لوگوں کو اس بات کا بڑے اچھے سے علم تھا تو راڈ ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو آپ دوسری نے یہ بات یہ قرآن سے دلیل دی ہے حدیث سے کہ سٹیک نہیں لے کے جا دوسری سکتے جگہ مسجد میں؟ پر وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسجد میں بیٹھ جاؤ. کہانی اس شریف، بندے کی جیب کے کہانی اندر شریف بیک سائڈ کے لکھی جو اوپر بھائی لپیٹی جو. راڈ تھا جس کی وجہ ایک سے وہ منٹ مسجد کے اندر ذیشان صاحب بیٹھا بھی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے تو ہیں؟ بات کوئی کرنے دے گا تو کچھ کہیں گے نا بھائی. کرے 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 پہلے آئے ہیں جی کیا ان کی نام زبان ہے بدی. جویا صاحب، دوسری دفعہ آئے ہیں انہوں کاملات نے بھائی، بات اب نہیں آ کرنے گئے ہیں وہ دینی باسطک یار، بھائی. یہ بڑے بات پڑھے میں لکھے لوگ ہیں تیسرے سارے، والا مانگا آپ دے نہیں چھوڑ رہے، دیں یار او پلیز. کمال بھائی آتے آپ کو اسلام ویسے بات بھائی کرنے دیں کہانیاں تو کرا رہے ہیں وہ بات آپ کرنے مجھے. تو دیں بھائی، بات کرنے دیں گے تو بات کی ہے ہوگی نا. آپ نے بات، آپ نے بھائی کہا کی کہ کہاں وہ ہے امریکہ میں وہ بھائی؟ ساری کمال آتے ایک اسلام منٹ کی بات میں 20 دفعہ تو آپ نے ٹوک دیا اندر. آپ کہہ رہے ہیں بات کی ہے بھائی. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اچھا بھائی آپ جیت کو گئے ہیں کتنے آپ گھنٹے لوگ، چاہیے گفتگو کر بھائی حوالہ صرف دینے ایک کے منٹ ہی لیے؟ دے دو بھائی، ایک منٹ ہی ہاں لگا دو ایک منٹ جی، بھائی، میں ایک منٹ لگا دو خاموش بھائی، نوٹ ایک کریں منٹ ذرا. لگاؤ یار، کائنڈ ہارٹیڈ ایک منٹ لگاؤ یار. اس میں کوشش کریں یہ بندے نہ بولیں درمیان. بات صرف اور صرف اتنی سی آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ دلیل لینے گئے تھے وہ بھی یو ایس کے اندر، تو یہ ساتھ راڑ لے کے جانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں نے اپنے جتنے بھی لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کو ویڈیو نہیں دکھائی. دوسری بروڈ کے اوپر اگلوں نے بڑی واضح طور پہ ویڈیو دکھائی ہے کہ بندے نے بھائی ہاتھ میں راڈ پکڑا ہوا. ذیشان اور بات سنو، تیسری ٹھہرو ادھر رک چلیں جاؤ، پھر وہی بات ہے ادھر بھائی. رک جاؤ ذیشان رک چلو جاؤ. کر لو بات. راڈ کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو چیلنج کیوں کرتے ہو مسلمانوں کہ آ جاؤ؟ پھر اس کے بعد تمہاری ٹٹی نکل گئی ہے کہ ابھی راڈ لے کے آ گیا. یہ تم نے یہ انیشیٹو ہی کیوں لیا تھا؟ دیکھیں وہ باسٹک بھائی نہیں دیکھیں نہیں 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 یہ والی نہیں ہے. نہیں 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 ابھی اگر راڈ تو کی بات وہاں کو چھوڑ پر دو. آپ کو یہ انویٹیشن دیا گیا تھا بھائی آ کے لڑ لو تو بھائی پھر تو آپ سائڈ آ نہیں گئے. لیکن جب لالو آپ اس خود نے کہہ لڑا رہی تو نہیں ہیں نا ہے، نہ بھائی لڑائی یہی بات ہوئی ہے. ہوتی ہے نا، عقل مند کی یہ اشارہ آپ کافی نے ہوتا یہ ہے. چیلنج کرتے کیوں ہو اگر اتنا بھائی ہگنا پتنا کسی ہوتا ہے نے تم بھی جو لوگوں میں؟ بھی چیلنج کیا ہے آپ کو صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نہیں آپ نہیں کو نہیں دلیل لینے آپ یہ گئے تھے تو چھوڑ دیں، دلیل آپ لیتے اور واپس آ ریپرزینٹیٹیو ہو جاتے. کے آئے ہیں ان کے. آپ لوگوں کو ضرورت ہی کیا تھی بھائی وہاں جو راڑ لے آپ کے یہ جانے ہم کی. سے مت پوچھیں، ذیشان بھائی یہ کس نہ کیا ہو گیا پوچھو، ذیشان بھائی آپ چھوڑ ادھر دو. کس بندے کے چلیں منہ عثمان لگ رہے ہیں؟ بھائی. وہ دس از اتنا ناٹ یور بدتمیز بزنس انسان کہ ہے. ہم نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں. یہ بتاؤ کہ آپ لوگ چیلنج کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد بھائی ہگنا پتنا شروع چیلنج نہیں کر کرتے دیتے بھائی، ہو. آپ لوگ ڈاڈے لوگ ہیں بھائی، چیلنج نہیں کرتے، راڑ لے نہیں کے آ نہیں جاؤ. تو رشتہ مانگا شوریا آ گیا محمد حسین بھائی آپ سے بات چمونیا کرنی تھی یار. فک آف کل میں جا کے نا، ایڈیٹ. کل میں اسٹیٹفرڈ پہ ایک بزرگ لگاتے ہیں مسیح کے او چل چل جو پٹنا کی پوسٹر، بات ادھر نہ ان بتایا سے جا کے نا میں کرنے رشتہ کر کے مانگوں گا سب کے دکھایا کرو. سامنے. تمہارے جیسے محمد بھڑوے حسین بھائی کچھ دیکھا بھی ہوا نہیں نا آپ کر نے ان کو؟ سکتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں. وہ گیا نا ہمارا، اس نے کر کے دکھا دی. تو پھر کیا اگے ہو عزت رہ جائے گی آپ کی؟ یہ او کیا چل چل فضول چل بات ہے جو آپ اگے لوگ ہو کرتے جا ہیں. کے دودھ ਅਸੀਂ چو تے اس طرح کی پاکستان فضول ਇਨਕਾਰ آئیں باتیں گے. مت ਉਦੋਂ کرو ਕੀਤਾ ਹੈ پلیز. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ جاہل ਹੈ. قسم کے ਅਸੀਂ لوگ. ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਬਟਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ. بس جو یہ سب ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ. ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ. جو ਅਸੀਂ یہ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ سب چھوڑے ਤੁਹਾਡਾ چھوڑے ਰਿਸ਼ਤਾ اس طرح کی ਠੁਕਰਾਨੇ ਆ. جو یہ سب اس طرح کی گری بات نہ کرے، اس کو سٹوپڈ اوریجنلی رہنے انسان. دیں. اوریجنلی جی ٹھیک رہنے ہے، دیں. بار انہوں نے بار ان چیلنج کو کیا ہے، کچھ نہیں مل رہا. انہوں نے راڈ کیوں گالی. انہوں نے اس کو پرووک کیوں کیا ہے، کیوں بلایا ہے ادھر؟ اور پھر ادھر آیا کوئی نہیں ہے نہ، وہ جو They started it, sir. بھڑوا ہے They وہ آیا started کیوں it. نہیں ہے؟ بالکل ہی they started it آف on their کورس. own. بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا نہ جاتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا بزدل آیا نہیں. اب اگر وہ چلا گیا، اس نے دلیری کی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو داد بنتی ہے. وہ جیسے بھی گیا ہے، یہ کافی دن سے بلاتے ہیں، ایسے ہی پرووک کرتے یہ ہیں. ہے کہ یہ جو وہ مرزائی ہیں نا، یہ 74 والے بکری مرزائی ہیں. ان اور کو یہی یہ نہیں نا پتا کہ ابھی کم از ٹائم کم نکل یہ گیا. پتا چلا ہے کہ لوگ آ جاتے ہوتے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ اس کے ویپن پہ اعتراض کر رہے ہیں، بڑی سیدھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. وہ لڑکا اگر لے گیا ہے، اس کو یہ نہیں، اگر وہ تلوار بھی لے کے جاتا پھر بھی غلط نہیں تھا. ہے کچھ غلط نہیں لڑکے نے کیا، دلیری کی ہے اس نے. وہ گیا، اس نے کیا، دو جی والا دو، بس تو دو والا اس کو. اب یا نیکسٹ ٹائم بلاؤ نا یار کسی کو آپ. اب بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اچھا راڈ ہوتا ہے چھوٹا. جی جویا سر. بھائی، یہ ذیشان محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے بڑے ادب سے ان سے پوچھا تھا کہ دلیل دو. قرآن شریف یا حدیث مبارکہ سے کوئی دلیل دو. حوالہ پیش کیجئے کہ مسجد میں سٹک لے کے جانا نجائز ہے. تو ذیشان صاحب کو حوالہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ جی 1 منٹ کی بجائے 2 منٹ لے لیں. ہاں جی. ہاں
चलें 1 मिनट तो दीजिए। जी कह कौन रहे इनको हैं 1 मिनट जो पूरा 1 हमेशा मिनट दें 60 सेकंड का। सुन लिया करो सारे, तो आप लोगों जो कहते हैं गाना औरत उसका जेवर है मर्द का, ये जिनका बिलीव है वो कह रहे हैं। अच्छा बात सुनिए मेरा गौर से, अगर आप लोगों को इतना ही है ना कि आप लोग जीत गए हैं तो फिर हौसला रखें। जीता हुआ बंदा शोर नहीं मचाता, ठीक है, वो सिर्फ तहम्मुल के साथ प्यार से बात सुनता है, ठीक है, बात सिर्फ इतनी है। शान भाई शोर नहीं मचा रहा है, निशान भाई शोर नहीं मचा रहा है, पूरी रात शोर मचता रहा है, झूठ बकते रहे हैं बैठ के, उनको वापसी जवाब दे रहे हैं। हम तो आराम सुकून से रात को सोए थे, सुबह उठ के पता चला कि वो लोग सब रात पूरी शोर मचाते रहे बैठ के और झूठ बोलते रहे बैठ के। हम उनके झूठ के जवाब दे रहे हैं प्यारे भाई, हम शोर नहीं मचा रहे प्यारे भाई। अली अकबर भाई मुझे तो कोई बात निशान साहब पहली बात तो ये है, निशान साहब पहली बात सुने कि हवाले के बगैर बात करना और कहना हवाला आओ वहां मिलेगा, ये इस कोई कुरानी तरीका है तबलीग का? भाई अगर आप लोगों को लगा कि कुरानी तरीका नहीं है तो आप क्या लेने गए थे वहाँ पर? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कुरान ये तरीका बताता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगा कि कुरानी तरीका नहीं था तो आप लेने क्या? आपको क्या लगता है यार? 1 मिनट बबान साहब चुप कर, वो आपने देखा था प्लीज, मेरी बात हो रही, मुझे करने दो। बैतुल फतूह में बंदा हवाला देने चला गया था, उसका नहीं पता आपको? जी जी बिल्कुल, एडी वाले गए थे, गया था, ऐसा इनिशिएटिव लिया था और बड़ा बड़े प्यार से गए थे, राड साथ उसके बाद आपने ब्रॉड लगाई, देखो हम तुम्हारी बैतुल राड साथ लेके तो नहीं गए थे ना? क्या वो अपने साथ गन लेके गया था? नहीं मना है गन लेके जाना, बताओ ना, राड मना है लेके जाना। अभी तो दो सवाल पूछे हैं कमाल भाई, दोनों के जवाब नहीं दे रहा बंदा को। अच्छा वो जस्टिफाइएबल है, हदीस दे दो, कुरान कहता है दलील लाओ अगर सच्चे हो, ये कहते हैं फलानी जगह वो दलील मिलेगी, ये तुम्हारा इस्लाम है। 1 मिनट नदीम भाई, 1 मिनट नदीम भाई, 1 मिनट। हाँ ये हवाला देने लगे कुरान शरीफ से। चले निशान साहब, साथ राड लेके गए थे वो गलत तरीका है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई मैं तो आपके नहीं, कुरान से बताओ कि ये गलत है, कुरान से बताओ, कुरान से बताओ ना, तुम्हारे कहने से नहीं कुछ भी होगा, कुरान शरीफ से बताओ। आपस ही कर नहीं आपको पूछ रहा हूँ, इतनी देर का होता हवाला तो निकाल ना देते। इसमें हवाले की क्या बात है? आपसे ये बात करने को क्यों नहीं? इस्लाम की बात हो रही है ना, इस्लाम की बात हो रही है। अगर आपको शरई अमल लगा है तो आप क्या लेने गए? आप नहीं मुझे बताओ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वो क्यों गया। जमातें होती हैं जिनके दावा जाता है, हाँ इलाही जमातें क्या होती हैं? गैर शरई काम करती हैं? नहीं नबी शरीयत पे दलील तो यही तो पूछा, इसमें गैर शरई काम तो बात आपसे कहने की अपने कोशिश साथ कर रहा हूँ। अपने ताहिर बताओ इसको गैर शरई साबित करो ना। अपने ताहिर साहब से पूछे ना, जिन्होंने कहा कि क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है कि हवाला वहाँ आके ले लो। ताहिर साहब का पकड़ के बैठ गए, मेरा पकड़ो सवाल की कोशिश कर रहे हैं, मेरा पकड़ो सवाल और उसका जवाब दो। जिंदगी डेंजर्स में डाल ली है, मानेंगे? मेरे का दोबारा पाकिस्तान में किया करते थे, चल लड़ पे हो। हाँ वो मैं अच्छा सवाल कुरान शरीफ से जवाब दो कि जी स्टिक लेके जाना मस्जिद में ये गैर इस्लामी है। चलो और भाई आपको सीधी एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आप लोग अमेरिका के अंदर बैठे हुए थे, आप लोगों को अगर इतना मुश्किल पड़ रही थी तो बड़े आराम सुकून के साथ लड़के अपने को बेचते, कहते भाई जी आपने मेरे से बात की है हवाला दे दो। ऊपर से आपने लड़के अपने को बड़ा अच्छे तरीके के साथ मास्क पहना के भेजा, दूसरे लड़कों ने किसी ने मास्क पहना नहीं हुआ। क्या अजीब बातें करते हैं यार आप लोग। हाँ दोनों बातें का सबूत दो कि कुरान से और हदीस से कि मास्क पहन के मस्जिद में जाना और स्टिक लेके जाना मना है। चलो आप लोगों ने ना उसको एक तो मास्क लगा के दोनों बातों का दूसरा आपने उसको राड के साथ दे दो, भेजा और आप ऊपर से कह रहे हैं कि इतनी सी बात है तो बस आप देखो आप इस्लाम पे बात करने आए हो यहाँ पर और इस्लाम में आपके पास हक भी नहीं है। चले जाए, इस वजह से मौलवी साहब ने उनको जाने के लिए कहा कि भाई यहाँ लड़ाई का खतरा है, आप चले जाए। बात दलील से साहब ने अच्छा किया यार, आप लोग दलील देने में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? 1 मिनट इकबाल भाई, इनको दलील देने में प्रॉब्लम क्या होती है? दलील का है तुम्हारी? लोगों को सुन रहा हूँ ना, तो कुरान लगे हुए यार ना, आप लोगों ने मास्क की बात की नहीं करते हम भाई, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। दलील किधर है? राजा साहब दोनों दलीलें किधर है आपकी? दोनों दलीलें दो। और सही जोया साहब ठहरे। ज़ीशान अभी क्या चाहते हो? रौला मत डालें। ज़ीशान अभी क्या चाहते हो यार आप? भाई हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सादा सी और सिंपल सी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या 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 आप लोगों ने राड दे के अपने लड़के को वहां भेजा तो आपने अपने लड़के की जिंदगी डेंजरस में डाली।
अच्छा आप ना वरी अगर वहां पर कोई इस तरह का वाकया हो जाता तो उसकी जिम्मेदार कौन होती? जमात होती। अच्छा ते नन ऑफ योर बिजनेस तुझे क्या यहाँ जोया साहब होते उसके एवी इतना तो किलना अड्डा तो भाई हमारा पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात हुआ करते थे, Don't उसका worry लड़ गया about थी, it. तेरे पीछे खलोते हैं जब वो उस लड़के के साथ तुम वाकया जाओ हुआ, यार खड़े अपना नहीं होना था काम उसके करो, साथ। तुम्हें तो तीली लगाने आ गए हो, तीली चलो नहीं भाई खड़ा। लगा रहे, आपको सिर्फ बात कर रहे हैं आप लोग तो नहीं नहीं आपके शान बात साहब आप अमेरिका में रहते हो, हौसला एक रखा मिनट करें यार मुबास्तिक आप भाई, आप अमेरिका में रहते हो? नहीं भाई हम नहीं रहते अमेरिका। आपको अमेरिका के लॉ का पता है? ये भाई फ्रांस हमें में रहता है। किसी भी मुल्क के लॉ का नहीं पता भाई। आपको मैंने जो पूछा है ना नहीं पता तो मुंह चुक के इत्थे बैठ के की गल्ला चलो करन फिर दे हो? वही बात आप उनको कुरान का भी नहीं पता। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਅ ਦਾ? जोया साहब हौसला रखा करें यार। आपसे जब नहीं आपको इसको ऐसे नीचे पट्टे उतारें, तरीके ऐसे पर ही बैठे होंगे, ये आवाज ना निकाला करे, मुनाफत वाली आवाज ना निकाला करे, इससे कुछ नहीं होता। इसको नीचे बिठाएं, शाबाश। चले आप शाह साहब ठोक नीचे के बात टैप करने टैप की करें, आती है, शाबाश। ठोक के बात किया तालियां करो बजाएं मर्दों की कौन सी तरह। ठोक के पाना बात कर रहे हैं। हाँ तो की तेनू बात की ये पता है है कि ना वो कानून कुरान दस पेश केड़ा कर लागू रहा होता है, है? ना कोई दुनियावी दलील कानून आप पेश लोगों कर ने रहा है। तो दी बात नहीं। किस हवाले से कर रहा है भाई? ना तो आप लोगों ने दो कोई ही स्ट्रॉन्ग कानून होते दलील हैं, दी निशान है। साहब, या आप लोग खुदा का जस्ट एक कानून होता है छोटी या सी इंसानों बात का के कानून लिए होता है। बार बार आप दोनों ही नहीं पेश कर रहे, फिर एक जंगल का कानून होता है वो पेश कर रहे हैं, इसका मतलब आप हौसला रखें, अल्ले नहीं तेला कर दी हौसला सारे के हौसला सारे रखें, बस हौसला हौसला रखें। दलील नहीं है हमारे पास, सारे हमने MG बकवास मेरी करनी है बात के बैठ सब के हौसला सोशल रखें। मीडिया पे भाई, गया भाई, हवाला भाई, देंगे, ओ भाई, हवाला ये ओ है, भाई, ओ हवाला भाई, हमारे पास ओ भाई, निकलना ओ भाई, ओ भाई, सारे MG एक मिनट मेरी बात सुन ले गौर से। ये बंदा उनका एजेंट है, ये ठंडा ठंडा लगा रहेगा, डेंजर टाली डे। इसकी बात जो है ना अभी जवाब मत दो, इसे चुप करके जाने दो। बड़ी मेहरबानी जीशान साहब, थैंक यू, यू हैव शोन योर कंसर्न, वी हैव लिसन टू यू, वेरी वेल डन, ओके यू कैन हाँ लीव। जी, आप इनको नीचे बिठाएं और उनको हाँ कह के बस टैप करें वहां पे, ए, नीचे वो तो टैप टैप करता करें, जाएगा, शाबाश। वो मीठा मीठा लगा हुआ है। हाँ आपने डेंजरस में चले डाली उसको है, बिठाएं राड नीचे, नहीं फिर लेके जिसमें भी जाना बिठाना। चाहिए। वो जो गया था बैतुल फतू, वो गया था लेकिन राड तो नहीं ना लेके गया था, इसने राड 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 करता जाना। मैं भी बस सुन रहा हूँ इनको, जिशान साहब को। सर जी ये तो बात ही कर रहे हैं, हमें तो खुद नहीं पता वो रॉड लेकर गया कि नहीं गया, ये तो ये कह रहे हैं। अरे बात भाई जान जी जी खान भाई मेरी जान ये ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ फफे कुटनी वाली कि जी वो बड़ा लड़के को डेंजरस में डाला। सर मैंने चैट दिखाई है सबको, तो आपके राजा सुहेब साहब 20 लोगों को लेके आ रहे थे और आप कह रहे हैं हमने डाला उनको डेंजरस में और उसको बताया नहीं कि तुम अपने साथ तुम भी ले आओ बंदे जो के लाने। आप क्या बात कर रहे हैं सर? जाके अपना पहले होमवर्क करके आए आप। इंतहाई गैर मुनासिब बात है। आप ये इस किस्म की शाइस्ता गुफ्तगू करते करते बीच में से ये टिचरे ना करें हमें। मैंने सब दोस्तों को दिखाई है मेरी और सोहेब की जो चैट हुई है, उसे कहा कि मैं अपनी क्रिकेट टीम के सारे लोग ला रहा हूँ और जो जो मुझे जानता है मैं उनको भी ला रहा हूँ ट्यूसडे की शाम 5 बजे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और अब आप कह रहे हैं कि जी जमात का लड़का, प्लीज गिव अस अ ब्रेक विल यू? जी जो ये सर हद होती है यार। उसमें क्रिकेट टीम का जिक्र है और साथ में कालों का जिक्र है। काले भी मैं उनसे भी कांटेक्ट करता हूं, उनको भी ले आऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ करने पे वो बंदा आपके पास क्या सबूत है उसके बाद रॉड दा बताइए मुझे जरा, लेकर आओ सबूत। कितने वे ए जिन्ने भी उत्ते आके गल करते ने लियाओ वीडियो पाओ ते दसो केड़ा रॉड सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। जोया साहब हौसला, यार केड़ा अभी ਤੁਹਾਨੂੰ गल चुप जो गया। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं आमर भाई के कहाँ साथ जाके हम देख सकते हैं जो सिर्फ आपको ही दिखता है? मैं आपको वो भी मिल जाएगी, मेरी जमीन। वो जिशान साहब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आपको मैं चैट दिखा दूंगा, ये सब दोस्तों के पास वो चैट है। सुहेब राजा उसमें कह रहा है कि मैं अपनी क्रिकेट टीम के लोग लेके आ रहा हूँ और भी दूसरे लोगों को। बिल्कुल उसने थ्रेट दी थी, यस, और वो लिखी हुई बात है। द गाय मैं मुंह जुबानी बात नहीं कर रहा, जोया मुंह जुबानी बात नहीं कर रहा सर। हम आपको दिखाएंगे लिखा हुआ। अब्दुल्ला साहब ऊपर तशरीफ लाए हैं, सरकार आप भी बात कर लें। अच्छा एक मिनट अपना खान साहब, निशान भाई मेरी बात सुने यार। बात ये अगर वो ना जाता ना तो फिर आपने आके इतराज करना था कि जी बंदा गया क्यों नहीं। जो अब बंदा चला गया है तो अब आप इतराज करें कि वो गया क्यों है। यहाँ पे एक सेकंड जिशान भाई, एक मिनट एक बार मैं वाज़ेह मौका दे दूं अपना। ओ जिशान भाई गल पूरी होने दो। ओ जिशान भाई एक बार भाई मेरी एक वाज़ेह, आप देखें आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आखिरी बात करूंगा, मैं काफी देर से खामोश हूं, मेरी बात 30 सेकंड, जस्ट 30 सेकंड दे दें। मैंने कहा कि लड़के के जाने से मुझे इतराज नहीं है। मैंने कहा जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो गलत है। सारा तरीका भी बता रहा हूँ। देखें यहाँ पे जो आते हैं ना टिक टॉक के ऊपर आपके सामने होता है। कल जैसे फुरला शाह आया, किसी में हिम्मत नहीं है
ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਆਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ बैठा जी शोएब राजा आता है एज एड्रेस अगर एक बंदा चला गया मुझे बताएं कहाँ पे जुर्म है मास्क लगाना कहाँ पे जुर्म है अपने साथ सेल्फ डिफेंस के लिए चीज लेके जाना वो बंदूक पिस्तौल तोप लेके थोड़ी स्टिक थी ना चलो राड कर लो जी यार अकबर भाई सॉरी इधर एक एडमिनिस्ट्रेशन बात आती है कि एक वीक पहले यहाँ बड़ी सख्त लड़ाई होती है इस मस्जिद के अंदर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा ही कोई नहीं था जो दरवाजे पे रुकता कोई ड्यूटी पे ही नहीं था अब वहां पे मौलवी साहब ने भी देखा है राशिद भाई को उस हालत में उन्होंने उसकी उस हालत पे एतराज नहीं किया they had let him in the mosque for more than 20 minutes अच्छा आखिरी बात अच्छा इसका मतलब क्या है यार अच्छा वो चले गए ठीक है जी उन वो ढूंढते रहे सड़कों पे ढूंढते रहे नहीं मिले मस्जिद के अंदर चले गए अच्छा वो चला गया उधर जाके अच्छा ये 10-12 बंदे हैं 8-10 हैं 4 हैं एक बंदा गया है ना वो कह रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ वीडियो में हवाला दे दो हवाला दे देते बात खत्म हो जाती ये पूरा ड्रामा करना कि ऐसे है तो हमारा मौलवी नहीं मान रहा ये नहीं कर उसने वहां पे गालियां थोड़ी दी हैं जंग थोड़ी राड है ठीक है जी राड उसके पास है राड मारा थोड़ी किसी को ये दिया थोड़ी है किसी को राड वो गया है आप उससे कहो भैया हवाला लेने आए हो बैठो बिस्मिल्लाह मस्जिद के अंदर बैठो मौलाना साहब नहीं है हम आपको हवाला देते हैं जिसमें मेन बात हो रही थी ठीक है हवाला भी नहीं दिया और फिर ड्रामे कर रहे हैं खड़े हो क्या अब आप कह रहे हैं जी वो सेल्फ डिफेंस ये हो गया अपने लड़के को उधर भेज दिया ये सारी सानवी चीजें हैं प्यारे भाई वही ओपन है वाला सवाल कि वो गया है या जिस काम के लिए गया था आप उसे हवाला दे दो कि भाई ये है वो हवाला आप आ गए हो जैसे भी आए हो मास्क लगाया है बुरका पहना है ये किया हालांकि आपको आपने वहां पे आए तक इतराज नहीं किया लाल मस्जिद से बुरका पहन के भागा था उस पर आप लोगों को कोई इतराज नहीं है साडा बंदा मास्क ला के चला गया तानू इतराज हो गया ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ बुरका पा के प्रॉपर नस रहा सी उत्थे तुसी कोई नहीं सी बोले ठीक है इसलिए ये बातें आपने बच्चों वाली बातें कर रहे हैं मास्टर साहब आपको सही जवाब दे रहे थे ठीक है इसलिए प्यारे भाई आप अपने बंदों को जाके पूछें कि यार एक मरजई आ ही गया सी उन्हें जवाब तुसी देंदे अच्छा अब जो जहां ये भाई एक मिनट आपने इतनी बड़ी बात की है जस्ट मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा देखें आपने अगर तो वो वीडियो देखी है जो अमन नज़ीर भाई के पास है तो उसमें बड़े वाज़ह तौर पे ऊपर वो उनसे कह रहे हैं कि भाई बैठें यहाँ पर मस्जिद में जब वो मस्जिद के अंदर गया ना उन्होंने उसे कहा है कि भाई यहाँ पर बैठें अभी बैठ के बात कर लेते हैं आप ये कह रहे हैं भाई उन्होंने बैठने का कहा ही नहीं है ठीक है ना इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप एक तरफा वीडियो ना देखें आप दोनों तरफ देखें मैंने पहले अमन नज़ीर भाई औरों की भी देखी है उसके बाद आप लोगों की भी देखी है बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आपका लड़का जो गया भाई हवाला लेने का कोई मसला नहीं है लेकिन सिर्फ ये तरीके का इशू है आप ये जो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना राजे ने एक दफा झूठे मुंह से कहा है वहां बैठने के लिए खुद वो वहां से गायब हो गए हैं आपकी मस्जिद के इंतजामिया ने एंटरटेन नहीं किया उसको हम उस पे बात कर रहे हैं आपको बात की समझ ही नहीं आती है मैनिपुलेट करते हैं हर बात को हम राजा साहब के साथ कहने पे चले तो गए आपकी और वो लोग जिनकी बैठक में बुलाया गया उन्होंने एंटरटेन नहीं किया धक्के मार के बाहर निकाल दिया बिना दलील के आपको बात ही नहीं समझ आती आप हमेशा हर बात को मैनिपुलेट करते हैं ऐसा बुलाया किसने था ओ यार मैं किधर से जिसके राजा साहब ने बुलाया था जिनको खुद ही उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया अच्छी बात है तो इसमें फिर इंतजामिया का तो कोई मसला राजा साहब ने फिर भाना सी ना पहला तो भाई यही आपसे कह रहा हूँ कि राजा भाई को इंतजामिया ने मार के बाहर निकाला बनता तो ये था कि राजा भी बैठता राशिद भाई भी बैठते मौलवी साहब भी बैठते वहां पे बैठ के अपना मामला तय करते अलहदा से होके कि उन्होंने अपनी मीटिंग की है उसके सामने करते जिशान साहब आपके सुहेब साहब ने बार बार कहा कि मेरा मस्जिद में मामला तय हो गया है वो आज मैंने अरेंजमेंट कर लिए हैं अब हम उनसे रसीदें लेते हैं इसकी हाँ ये बात कर रहे हैं यार हाँ ये बात है जिशान भाई उन्होंने बार बार कहा कि मैंने कर लिया जब एक बंदा राड लेके जाएगा मास्क पहन के जाएगा मोबाइल हाथ में ऐसे वीडियो करके बनाता रहेगा इमाम मस्जिद क्या हो सकेगा बैठ मेरे कदमों में वही है कि अब आप लोग इस बात का पतंगड़ बना रहे हैं कि इमाम मस्जिद साहब ने उसको ये नहीं कहा खान साहब ये बात बिल्कुल राड आपको मस्जिद के बाहर नजर आया मस्जिद के अंदर आपको रोड नहीं नजर आया बात आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं मस्जिद के बाहर आपको नजर आया मस्जिद के अंदर आपको मस्जिद के बाहर रोड नजर आया है मस्जिद तक तो आपको पता ही नहीं था उसके पास वो बैठा ही इस वजह से नहीं है मस्जिद के अंदर मस्जिद में खड़े होके बात हुई मोर देन 20 मिनट इतना तो वो बाहर नहीं बात की
जितना वो अंदर टाइम स्पेंड करके आए जोया हैं। साहब इस बात आपको को रॉड ना बाद देखें में बाहर देखें मिला है, देखें आप जोया अजीब साहब बातें इस करते हो बात यार। को मान ले जी तरीकाकार रॉड गलत लेके था उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ सो रॉड था नजर आया सी बाबा मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ? देखें साबित हर करो बंदा मस्जिद के अंदर आपको आपको यहाँ रॉड पर नजर टाइम आया है। हाटी ने भी कहा साबित है कि करो तरीकाकार मस्जिद गलत के था अंदर आपको रॉड नजर आया है। जोया साहब साबित तरीकाकार करो मस्जिद गलत के था अंदर आपको रॉड नजर आया है। जोया साहब तरीकाकार गलत था अब मान ले इस बात आप को जोया साहब करने से कुछ नहीं होना भाईजान, दलील से बात करें। भाई हम तो आपकी ये रिस्पेक्ट ही करेंगे ना मुखन्नसाना रवैया मेरे साथ ने अपनाए, मुझे ये पसंद तो अब नहीं है। आप फिर मैं ठोक के बात दूसरा करने रवैया का आदमी हूँ, अपनाएंगे आपको ठोक के वो भी नहीं सुनने का पसंद आदमी हूँ। आएगा आपको फिर कोई भी तो जो रवैया बात पसंद नहीं आपको आएगा बताई है ना, आपको मस्जिद के बाहर पता चला था, मस्जिद के अंदर का मामला जो था, तब तक आप सुनमन बुक आपके हवास गुमे हुए थे उस वक्त, आप लोगों को जोया समझ साहब नहीं आ रही, नहीं कर सके, आपको धक्के मार के निकाल दिया गया वहां से। चलो शुक्रिया जोया साहब दूसरी बात यह है कि उसने अपना राशिद ने राड नहीं निकाला, उसने राड छुपा के रखा, उसने किसी को शो नहीं किया। अगर वो बदमाशी के चक्कर में आता तो वो निकालता खुद। फिर वही बात है जी यार उसकी टांगों तक, उसके घुटनों तक जाके उसने देखा, उसकी ओपनाइज तलाशी एक यार साहब की तुम्हारा ली है जब उसने। दिल करे ना मेरे से वीडियो ले लेना सारी वीडियो खुद देख लेना इन्होंने वो वीडियो दिखाई है और जो रहने दो, हमारे इन्होंने पास अपनी अपनी वाली वीडियोस दिखाई हैं, पास रखो जोया तुम अपनी साहब वीडियोस। जोया साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इससे बहस मत करें, जितनी ही बहस करेंगे आप अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है? मैं ये कहूंगा। शुक्रिया। कोई और किसी और से बात कर ले। सर दूसरी बात यह है कि देखिए वो जी मैं इजाजत चाहता हूँ, आप और खान भाई आप करें, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब साइट पे आ गया हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर बाद में बात ठीक है कोई मसला नहीं। नहीं देखें दूसरी बात ये कि मैं खुद कभी इस तरह से सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सर कल मेरे लिए भी इतना डिसअपॉइंटिंग और शॉकिंग था कि शोहेब कह रहा है कि मैं बंदे लेके आ रहा हूँ और ये लड़का एक रॉड ले जाए तो सबसे बुरा, यानी आपका कुत्ता हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टोमी। सर आपका मतलब ये काम करती है आपकी, सर आपका मतलब ये काम करती है आपकी। माइक खान साहब आपका माइक खराब है आज, आपकी आवाज ना अंदर से वो बार बार जैसे पुराने टीवी पे नहीं ऐसे हो रही है बार बार। सरकार मेरा गुस्सा पुराने वाला आ गया वापस। नहीं अब ठीक है बोलने कोई नहीं, वो आवाज कड़कती है अंदर, लेकिन खैर है अब पैगाम पहुंचा दें। अच्छा नहीं मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपका बंदा 20-25 लोग लेके आ जाए, हमारा सिंगल लड़का दलेर का बच्चा शेर का बच्चा वो एक रॉड ले जाए और वो भी अपने छुपा के रखे, उसने किसी को दिखाया नहीं, अपने पांव पे वजन देके खड़ा हुआ है। वो आप कह रहे हैं कि जी ये उसका बड़ा गैर मुनासिब था, उसने खतरे में डाला, वो देखें जी रॉड ले आया। सारी की सारी देखें मैंने ये नहीं कहा कि अगर शुएब राजा भाई ने ऐसी बात की है कि मैं इतने लड़के लेके आऊंगा तो उन्होंने भी गलत बात की, मैं तो ये कह नहीं रहा भाई, मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी बात हुई है तो ठीक नहीं हो। दूसरी बात ये है कि ये कह देना दलेर का बच्चा, गाँव में ना सिस्टम बहुत चलता है, अगले अदालतां भुगतते रहते हैं तो पीछे कोई नहीं खड़े होता। सर ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है और मैं भी कभी इस तरह से सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। देखें आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप थोड़ी सी इंसाफ से बात करेंगे। इंसाफ से बात कर रहा हूँ, कह तो रहा हूँ कि भाई लड़के की जिंदगी डेंजर्स में डालेगी, आप फिर नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं नहीं देखिए शेर का बच्चा, मैं कह रहा हूँ शेर का बच्चा तो होते हैं सारी शेर की हैं। देखिए बात जब ये है खान साहब, देखें बात सुने खान साहब, बताऊं क्या बात है, अपनी चीजों के पीछे दूसरों को बलि नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है? आप लोगों का काम बनता है, अभी मियाँ जी आप लोगों को कह के भी गए हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला और जमात के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वो पुरानी रंजिश जोन सी है ना उस पर थोड़ी सी अना को तस्कीन पहुंची है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अना को तस्कीन पहुंची है। सर तस्कीन अपनी जगह मुनासिब है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उसको उस लड़के ने जमात ने उसको मुझे बस थोड़ा सा ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है, ये ऐसा नहीं है जैसा, इसीलिए देखिए आपको आधा सच। जी सर देखिए ये इस तरह से ये इंतहाई गैर मुनासिब बात थी, जिस वजह से मुझे अब बहुत मैं ऊपर आना नहीं चाह रहा था, मैं नीचे आराम से बैठा आपकी बात सुन रहा था, लेकिन ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि आपके पास सिर्फ आधा सच है। पूरा सच तो मैंने आपको भी दिया कि अगर हमारा लड़का एक रॉड लेके चला गया और उसने दिखाया भी नहीं, अपनी जैकेट में या पैंट में रखा हुआ है, और आपकी तरफ से वो बंदा कह रहा है कि जी मैं 20 लोग उधर से 20 लोग उधर से और काले भी ब्रॉन्क्स के काले उनसे भी राब्ता करूंगा, तो मतलब आप खुद इंसाफ करें, ये मुनासिब बात नहीं। बहरहाल इससे निकलना तो खैर किसी का भी नहीं कुछ, लेकिन आप कम से कम बात तो मुनासिब करें ना, सही बात करें जो इंसाफ की बात। अवैस खान साहब। जी अब्दुल्ला भाई।
वैस खान साहब आवाज आ रही है? जी सर आ वैस रही है खान साहब आपकी। बार बार एक बात की जा रही है कि वेपन जेवर होता है, वेपन को कैरी करना कौन सा गलत बात है। मान ली आपकी बात, लेकिन जब उसने वेपन को निकाल कर बाहर फेंका, जब पकड़ा गया वेपन को निकाल कर बाहर फेंका और कहता है आओ मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो, ये क्या था? सर अब्दुल्ला भाई, आपने अगर वो वीडियो देखी हो, मैंने दोनों मैं 2 ब्राडों पे था उसमें। मैं एमपीओ की ब्रॉड पे भी था और मैं जाहिद जमील की ब्रॉड पे भी मैं वॉच कर रहा था सब। ठीक है, जो वो निकाला है, स्टिक निकाली है, वो वहां से बाहर आके सड़क पे, और वो भी उसने स्टिक निकाली नहीं है। सुन लें, नहीं। उसने नहीं निकाली, ये भी गलत फहमी है। जी जी उसको सुहेब ने कहा कि ये क्या है, पीछे हमें दिखाओ। सुहेब ने मांगा है उससे, वो नहीं दिखा रहा था ना, वो बदमाशी कर रहा था, वो तो आराम से जा रहा था। हाँ, तो ये तो ओहो भाई, ये तो उसकी बदयांती है ना कि वो वेपन बताए बगैर सर, मस्जिद के अंदर लेके गया। सरकार वेपन, आप एक स्टिक को वेपन करके बात को एग्जैजुरेट नहीं करें सर। अब्दुल्ला भाई, आप मुनासिब लॉजिकल आदमी हैं। उसने नहीं शो किया किसी को, वो जा रहा है, वापस गया, इमाम साहब का आदमी आया और उसने कहा कि अब भाई हम चले जाएं यहाँ से, और वो आप जा भी रहा एक राड को, एक 1.5 फुट के राड को टूथपिक ना कहें। अवैस खान है। साहब, आप भी एक 2 फुट के राड को टूथपिक ना कहें। नहीं, मैं डाउन प्ले नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इंसाफ से बात करें। ये जुल्म है कि एक शख्स ने वो रॉड नहीं निकाला अपनी इनिशिएटिव पे, और ना ही उसने किसी को कोई ऐसा लफ्ज बोला है कि जिससे जाहिर हो कि वो गुस्से में है या कुछ करने वाला है, या उसने कोई पकड़ा हुआ है हथियार। वो शराफत से बात कर रहा है और वापस जा रहा है। वो तो जब हमने पकड़ लिया उसको, जब हमने पकड़ लिया कि इसने कोई चीज कैरी की हुई है ऐसी जो किसी सर देखें, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपसे अपने 20 लोग पकड़े नहीं गए, हमारा वो एक छोटा सा वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है क्या? उसके बाद अवैस भाई, उसने अवैस साहब उसने इंस्टेंटली वो फेंक, जिससे ये नजर आता है वो टोटल ही इंतशार के लिए आया था। सर आप जब चीज लाया था वो कैरी करता। सुन लीजिए, आप जब एक बंदे को कह रहे हैं, उसको प्रवोक कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, और उसके ऊपर 3-4 लोग खड़े हो गए हैं और वो अकेला है, तो क्या प्रवोक कर रहे हैं तो उसको तो अपने पास रखना चाहिए वेपन। क्यों प्रवोक कर रहे हैं आप? अपने पास रखना चाहिए, वो वेपन कैरी करना चाहिए। आपके पास दलील लेने आया, आप आगे से उसको प्रवोक कौन प्रवोक? गाली वो दे रहा है, प्रवोक हम कर रहे हैं। इसको क्यों कहा कि मास्क उतारो? आपको दलील लेने का ये तरीका होता है। आप दलील दे, आप उसको मास्क की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, डेंटेड। आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या नाम है आपका खान साहब? प्लीज भाई क्यों ना करें, आप जाने देते हैं। इसलिए आप थोड़ा माइक सही कर लें, समझ नहीं आ रही क्यों कानों को आपकी इबादत गाह में तो पता लग जाए ना कि ये लाहौरी अहमदी है। उसको अंदर उसके साथ एक आदमी को लगा देते हैं कि जब तक ये अपनी इबादत खत्म नहीं कर लेता इसके साथ रहना है। अजीब बात करते हैं आप। अली अकबर भाई, ये कौन सी दलील है जो कि वेपन को साथ लेके जाके ली जाती है? मैं भी तो ये बात ही कर रहा हूँ कि भाई आपने दलील लेनी थी, सादा से जाके दलील ले लेते। अगर मुसलमान कोई ऐसी वैसी हरकत करते तो भाई आप लोगों के पास एक चीज़ होती कि देते देखिए हम दलील लेने गए थे, हमारे साथ ये किया उन्होंने। अब बात ही अच्छा, अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? असल में वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार के लिए आया था। जब उसने देखा ना कि ये मैं पकड़ा गया हूँ, अब इन्होंने देख लिया जो वेपन मैं कैरी कर रहा हूँ, उसको फेंक के शोर शुरू कर दिया, मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो। वो गया ही इंतशार की दो चीजों के लिए। अगर तो किसी के पकड़ने से पहले वीडियो बना के बाहर निकल आया तो निकल आया, अब्दुल्ला मेरी आवाज आ रही सही? भाग गया। मेरी आवाज, और अगर फंस गया तो इंतशार करूंगा। अगर मेरी आवाज आ रही नीचे दोस्तों को तो बता दो। अब्दुल्ला आपको मेरी आवाज आ रही? जी खान साहब आ रही है, करें बात। जी आ रही है। अच्छा, मैं सर आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक शख्स अपने मुंह पे मास्क लगा के आया, ठीक है, आप आप इतनी बात को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सुहेब ने 2-3 दफा उससे कहा मास्क उतारो, उसने नहीं उतारा। अवैस खान साहब, वो क्यों
अपनी आइडेंटिटी छुपा कर क्यों बात करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, देखें आप लोग भी कोई कम नहीं है ना, आप तस्वीरें वगैरह खींच लें उसकी और भिजवा दें पाकिस्तान में, वो अपनी प्रोटेक्शन क्यों ना करे भाई? क्या हो गया आपको? देखिए आप मेरे तो भाई जब इतने खतरात थे तो फिर जाने की क्या जरूरत है? सुनिए जब इतने खतरात की खतरात का खदशा है तो फिर जाने की क्या जरूरत है? सर बहादुरी का मतलब बेवकूफ होना नहीं है, आप प्लीज कॉमन सेंस की बात करें। बंदा शो अप हो गया, वो आ गया, उसने अपना मास्क लगाया हुआ है, अब जो आपने उससे बात करनी है बात करें। वो मास्क पहन के आया, शलवार कमीज पहन के आया, धोती पहन के आया, इससे आपका क्या लेना देना सर? कोई लेना देना नहीं। और फिर आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं बार बार कि अपना मास्क उतारो, तो अगला बंदा तंग आके आपको यही कहेगा ना, यार तू पहन रहा रिश्ता देना है, सीधी बात है। आपका उसके साथ दोस्ती तो नहीं है। वैस खान साहब, वो इधर कोई नई बात नहीं है, ये गालीबाजी तो इधर कई अहमदी देते हैं, वो उसने कोई नया काम नहीं किया। तो फिर इसको नहीं ये लेकिन मस्जिद के अंदर खड़ा होकर जो किया है ये गलत है। सर आपने मस्जिद का भी तकद्दुस, आपने भी जो मेहमान आया है ना, जो अल्लाह के घर में आया है, आपने उसको फिर वैसे ट्रीट करना था ना, आप उसको आराम से ट्रीट करते, आप क्यों कहा है ना उसको आओ बैठो बात करो। हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था कि जब वो आया आप लोग उसको कुर्सी पे बैठाते, उसको कहते भाई ये किताबें। हाँ तो नहीं बैठ रहा था ना, वो उठ के भाग रहा था। नहीं, आपको मस्जिद वालों ने नहीं बैठने दिया सर। मैंने खुद पूछा सुहेब से अपनी प्राइवेट चैट पे कि राशिद चले ठीक है, मैं भी थोड़ी सी कॉल ले लूं, आपको दोस्त और बात। अली अकबर आप बात करने सर। मैं ना अभी सवारी के साथ बैठा हुआ हूँ, आप 2 मिनट कह रहे हैं मैंने अब्दुल्ला को सबक देना है, लेकिन आप थोड़ी देर दे दें सबक, उनको मैं देता हूँ। नहीं मैं सबक नहीं देना, वो सबक देना फिर मुझे भी आता है अली अकबर। अब्दुल्ला साहब देखिए, मैं भी ऐसा सबक दूंगा ना, फिर याद करोगे। सबक दिया है ना, सबक दिया है, आप लोगों ने नतीजा क्या निकाला है कि नहीं जाना चाहिए था। अब्दुल्ला साहब हम तो भी तैयार हैं, जिसका दिल करता है आओ, जिसका दिल करता है बात सुन लीजिए, हम तो भी तैयार हैं। अब्दुल्ला साहब मेरी बात सुनेंगे, मुझे एक 15 सेकंड दे दें सर। देखिए सर, हमारा आपकी जो कॉन्वर्सेशन है ना, इसको मिलिट्री की जबान में LIC कहते हैं, मतलब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि ये ऐसी छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होता है 2 ग्रुपों में, जिसमें दोनों तरफ के लोग टिक 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 लगे रहते हैं, ठीक है। ये वो वाली बात नहीं जो ये आप कोई धमकियां बड़ी वाली। उसने आपको कहा कि दलील दे दो, उसके मास्क पहने पे बात हो रही है, उसके जीन्स पे बात हो रही है, उसके कपड़ों पे, ये मतलब ये टॉपिक ही नहीं है यार। ये तो वो बात हो गई कि जिस बात का सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये तो वो वाली बात होगी, और उसमें कोई ऐसी इतनी बात नहीं थी जितनी आपने बढ़ा दी उसकी। वो बेचारे ने एक आम दुकान से उसको वो रॉड मिल जाता है, आप कोई भी बंदा ले सकता है, खवातीन लेती हैं, बच्चे लेते हैं, स्टूडेंट्स लेते हैं, कई दफा वो जानवरों को, कुत्ते बिल्लियां जो हैं उनको बचाने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें कोई खतरे की बात नहीं होती। और अगर अवैस खान साहब, अवैस खान साहब मेरी आवाज आ रही है? फरमाइए। जी अवैस खान साहब, क्या मैं मिर्जा मसरूर साहब से जाकर कोई सवाल कर सकता हूँ लंगोट पहनकर? सर आप देखें, लंगोट पहनकर जो अगर देखिए मैं अर्ज करता हूँ, जो लोग एक्सट्रीम नहीं, अगर तो आप इसका जवाब हाँ में देते हैं तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है, उसने ठीक किया। अब्दुल्ला साहब मैं आपसे पूछूं, आपने अपने अब्बा को चांटे मारने बंद कर दिए, इसका जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे आप? देखिए नहीं, आप इसमें हाँ ना वाली बात ही नहीं है, ये लॉजिकल है। आप कह रहे हैं उसके अपीयरेंस पर बात ना करो, आप कह रहे हैं कि उसकी अपीयरेंस पर बात ना करो। अब्दुल्ला भाई, शुएब राजा साहब आपकी तो ये राशिद साहब ये नबी हैं या खलीफा हैं जिनकी मिसाल, हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, आप राशिद साहब खलीफा हैं या नबी हैं जिनकी मिसालें आप कुरान और रसूल अल्लाह से दे रहे हैं? नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा हूँ जी, मैंने राशिद साहब, बात ये है कि अगर वो जाता, राशिद साहब खलीफा हैं या नबी हैं जिनकी सुबह से इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि वो ना जाता, तो इन्होंने बोल दिया कि वो डर गया। जरा दूसरे दोस्त को टाइम दें। जी दिलदार जानी,
आप क्या कह रहे जी मैं ओ खान साहब मैं यही कहना चाहना वा अगर वो गया वे खलीफा को छोड़ ਉਹਨੇ दें ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ आप ਵਿਖਾਈ ਏ मैं किसी मुरब्बी ਤੇ की तरफ जा ਇਹ सकता ਹੁਣ हूँ ਗੱਲ लंगोट ਨੂੰ पहन ਕਿਹੜੇ कर ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ हाँ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ऐसा तो ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ऐसा ਸਕਦੇ ਹੋ तुन के ਅਮਰੀਕਾ रख ਵੇ रहे ऐसा तुन ਇਹ के ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा ਉਹਨੇ ਤੁੰਨ तुन ਕੇ के ਰੱਖ रख ਖੜਿਆ ऐसा ਤੁਸੀਂ तुन के ਇਹਨੇ रखा है ਤੁਸੀਂ कि ਪੁੱਤਰ हो मरजइया ਗੱਲਾਂ ने ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ मरजइया ने मरजइया ने मरजइया ने ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ आखे साडी तौबा ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂ ਤੁੰਨ ਬਾਹਰ ਕੇ नहीं ਰੱਖ जाना ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ऐसा ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ऐसा तुने ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ कि ਨਾਲ तमाम ਖਲੋ- मरजइया ने ਓਏ आखे ਉਹ ਖਲੋ मरजइया ने कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ अबू दी ਨਾਲ इस तो बाद ਖਲੋਤੇ असा ਆ नहीं ਅਸੀਂ जाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ए ਤੂੰ मियां ਫਿਕਰ ਨਾ नवंजा ਕਰ हुन सारे मरजइया कोलों बारी बारी पूछ के गया दसो तुसी नतीजा की ਗੱਲ कढिया ਸੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕੀ ਹੋ ये ਜਾਏਗਾ करने ਵੇਖ जो ਲਾਂਗੇ बाकी रह गया सारी ਕੁਛ ਵੀ मरजइया ਨਹੀਂ तो ਹੋਣਾ मातम कर रही है सारी मरजइया मातम ਪਾਕਿਸਤਾਨ कर रही है ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵਿਕਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਤੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੀਗਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇਈ नहीं ना ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान ਤੂੰ नहीं ਰਿਸ਼ਤਾ है ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਦਾ ना देई अब्दुल भाई इधर नहीं छोड़ें छोड़ें बात ये वाली है देखें दिल की जानी भाई बात ये वाली है कि ये जितने भी आप डायलॉग बोल रहे हैं ना पाकिस्तान में रोज़मर्रा लाइफ के अंदर सुने जाते हैं ठीक है बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ ठीक है बात तो बुरी है लेकिन एक वैसे वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ एक लड़का था दो दोस्त ही थे किसी दोस्त ने मजाक से दूसरे दोस्त को गाली दी थी और दूसरे दोस्त के पास एक चीज़ पड़ी हुई थी उसने पकड़ के उसको मारी और उसका मर्डर कर दिया ठीक है अब बात जस्ट ये वाली है कि उस बंदे ने उसको उसकी बहन की गाली दी थी जिसकी वजह से उसने उसको गोली मार दी वहीं पर अब बात क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर आ गए घर बिक गया ज़मीनें बिक गई अस्तगफुरुल्लाह फिर वही बहन जिसको गाली दी गई थी वो बाहर जाती थी पैसे कमाती थी और ला के अपने भाई का केस लड़ती थी क्या फ़ायदा हुआ कोई फ़ायदा हुआ इस चीज़ से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ ये सारी की सारी वो बातें हैं क्योंकि पाको हिंद के लोग हैं हम मज़हब जो भी हो आदतें चेंज हुई हैं कभी अगर आप लोगों को ये लगता था कि आप लोगों की एक इलाही जमात है और आप लोग बाकी सबसे अलग हैं ठीक है तो आप लोगों को ये हरकत ज़ेब देती नहीं थी आपने अगर लड़के को भेजना था तो भाई लव फॉर आल करके भेजते आपने तो हेटेड फॉर आल करके भेज दिया हाथ में वेपन दिया उसके मास्क लगा के आपने कहा भाई जाके लेके आ हवाला ईडी ग्रुप भी गया था ठीक है मस्जिद के आपके उस सेंटर के अंदर लंदन में हवाला देने के लिए बड़े प्यार से वो गए हैं उन्होंने जाके बात की अगर उन्होंने पूछा कि भाई हवाला किसने मांगा है उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे किसी ने हवाला मांगा आप ये पकड़ लें और रख लें ठीक है सिक्योरिटी वालों ने कुछ चीज़ें पूछी हैं उनसे एडी वालों ने कह रही नहीं आप हवाला पकड़ें एडी ने हवाला दिया वापस आके कुछ चीज़ साथ वो लेके गया बंदा उसने अपनी सिक्योरिटी वालों से लड़ाई झगड़ा किया इस तरह बातें जस्ट ये वाली हैं कि आप कर सकता कर ले लेकिन बात है तरीक़ाकार स्टार्टिंग से ही गलत था ठीक है बस इतनी सी बात है जज़ाकल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरी आवाज़ आ रही है जी आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है जज़ाकल्लाह देखें बात ये है चलें ज़ीशान ने एक बात तो तस्लीम की कि अगर आप इलाही जमात हैं तो इनके दिल में कहीं पे तो ये है तो सही है इनके दिल में कि ये वाकई इलाही जमात है बात ये है कि जो होना था वो हो चुका सारे अहमदी भाइयों से दरख्वास्त है कि ये इस किस्म के जो बैड वर्ड है ना बैड मीन्स कि ये तूने के रख दिया ये कर दिया वो कर दिया ये ठीक नहीं है अच्छे नहीं है ये इस तरह नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ये भी एक इज़्ज़त होती है जो अल्लाह ताला ने दी है ठीक है और इस चीज़ को आजिज़ी के साथ इस चीज़ को देखना चाहिए और अहमदी भाइयों को अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो जो कुछ भी हो गया है
وہ اس کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. ویسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی, وہ سمپل سی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. اس بچے کو کسی نے بلایا, وہ گیا, تو اخلاقی لحاظ سے تو وہ جب مسجد میں گیا تھا تو ان کو ادھر ان کو پوچھنا چاہیے تھا, بٹھانا چاہیے تھا, بھی آپ آئے ہیں پانی پئیں. تو وہ آگے سے جو سچویشن ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے. تو چلیں بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس چیز کو اتنا انٹینسولی اگریسولی اس کو ڈسکس نہ کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم عاجزی کے ساتھ کوئی اور چیزیں, کوئی اور بات کریں جو اس سے بہت بہتر باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں کافی دور سے گفتگو سن رہا ہوں. اپن عائز بھائی آپ نے کل اس کو دیکھا بھی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ بات یہ جو بار بار ذیشان کر رہا ہے نا, یہ مرتد جو ہے یہ بات بار بار کر رہا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں نے بھیجا. سب سے پہلے تو یہ بات درست کریں, اس کو راشد صاحب کو کسی نے بھیجا نہیں تھا. جماعت نے کوئی تیار کرا کے کوئی ڈنڈا دے کے نہیں بھیجا. آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف اپنی سمپٹی, جو آپ لوگوں کی جو شرمندگی اس کو مٹانے کے لیے, جو کل آپ کے ساتھ شرمندگی جو ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ یہ ڈرامہ اب کر رہے ہیں. اس کو کسی بندے نے تیار کر کے نہیں بھیجا. اس کو پرووک کیا گیا. کس نے کیا؟ صرف ایک حوالہ مانگنے پر, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر حوالہ مانگا گیا اس سے, راجہ شیب سے, کہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر کر رہے ہو اس کا حوالہ دے دو. اس نے کہا تم میرے فیس آؤ, میں تمہیں فیس دیتا ہوں. یعنی کہ اس نے اس کو پرووک کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فیس بائی فیس آ جاتا ہوں, جگہ بتائے گی اس کو کہ یہاں پہ آ جاؤ. وہاں پہ گئے, آپ کے راجہ شیخ صاحب نہیں آئے. راجہ شیخ صاحب کے دم میں ان میں اتنا تپڑ تھا, ان کا ہماری مسجد میں آ جاؤ. بلکہ اپنی براڈ پہ جس دن وہ پہلا دن واقعہ ہوا, اپنی براڈ پہ یہ تو ڈاکٹر اویس بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اس کے چیٹ میرے پاس پڑی ہے. نہیں, اس نے اپنے منہ سے آپ کی براڈ پہ بیٹھے ہوئے سیکھ کر, یا جو جس کی بھی براڈ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس کو چاہوں میں فون کروں, میں بندے بڑے بلا سکتا ہوں. یہ ایویڈنس موجود ہے. اس طرح کی یہ باتیں نہ کرے کہ ہم نے بھیجا. نہیں, اس جوان نے انیشیٹو لیا, وہ گیا, وہ اپنی حفاظت کے لیے. اگر اس نے مسجد میں کوئی ویپن یا کوئی ایسی چیز شو کی ہی نہیں, کوئی سٹک نہیں شو کی, ٹھیک ہے, وہ بھی باہر بھی آ گیا تب بھی اس نے شو نہیں کی, جب تک اس کو ہاتھ لگا کے انہوں نے چیک نہیں کیا. آئی ڈی کون مانگتا ہے؟ پولیس مانگتی ہے. راجہ شیخ کو کیا حق تھا کہ وہ کسی بندے سے جو وہاں گیا اس سے آئی ڈی مانگے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. سبحان بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے اب یہ جو بہانہ لگایا راڈ, کیا اس کی وجہ سے حوالہ نہیں دیا؟ نہیں, یہ شرمندگی مٹانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ شرمندگی چھپا رہے ہیں راڈ کے پیچھے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ چھپ رہے ہیں. پاکستان میں بیٹھے ہم ان احمدیوں پہ ظلم کر سکتے ہیں. یہ صرف اب یہ راڈ اور یہ اس نے ایسے کیا. آپ کے مولوی ادھر لاؤڈ سپیکر پہ گالیاں دیتے ہیں, شرم نہیں
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ फजल के अंदर भी होते हैं मस्जिद फजल यार रहने दे ले जेडी मस्जिद च गया उनदी गल मुका लो मस्जिद फजल है पहले जेडी मस्जिद च गया उनदा मुका लो और निशान भाई जेडी मस्जिद च गया उन्होंने मुका लो सुने ओ यार मस्जिद फजल आए रब्बा मेरे केड़े पासे केड़े बंदे ने केड़ी गल करनी है। जीशान भाई मुझे एक बात बता दें, अली अकबर भाई ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ के ਤੁਸੀਂ हवाला नहीं दिता। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम डंडे सोटे लेके किसी से भी हवाले लेंगे कोई भी नहीं देता। इमरान भाई आप प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ती है हवालों के लिए। आप लोगों को ये बात पता नहीं कब समझ में आएगी। हाँ जी हवाला डंडे लैके आ गए सोटे लैके आ गए इंज हो कल्ला बंदा गया यार तुहाडे घर तुहानू जरा शर्म नहीं आ रही हैगी तुसीं ते 50 बंदे हो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪਏ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਾਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਦਿਓ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਇਓ ज़िशान साहब नो अली अकबर भाई ये पूछो कि ज़िशान साहब तो ही ज़िशान साहब आपको आवाज़ आ रही है छोड़ें जो वो हुआ आपने जमात अहमदिया छोड़ी है ज़िशान भाई बात सुन लेना अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई बात सुन बात कर लीजिएगा बात है वीडियो अगर आपने लेनी है मेरे से ले लीजिएगा। आपके बहुत सारे सेंटर्स की वीडियो मेरे पास भी पड़ी हुई है लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी होते हैं ये मत कहीं थोड़ी देर पहले वहाँ पर ये नहीं कर रहे जा वीडियो छड्डो तुसी लड़ाई झगड़े चलो नॉर्मल गल है मैं अर्ज कर रहा एक बंदा कल्ला गया तुहाडे घर बंदा खुदा उन्हें किहड़े तुहाडे सिर पाड़ ते उत्थे जाके ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। जी अली अकबर भाई ज़िशान साहब ने भी जमात अहमदिया छड्डी है तो अज इन्हों को पुछने जो उन्होंने होया वो तो फिर वाधू वेने ज़िशान साहब आपने जमात अहमदिया छोड़ी है तो वो दलाइल हमें भी बता दें प्यारे भाई जो आपने वफ़ात ईसा के तलाश की है कुरान करीम से और जहाँ से आपको पता चला कि हाँ मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने तो गलत बयानी की थी जमात गलत बयानी करती है ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा हैं और कुरान करीम की वो कौन सी आयत थी जो जब आप अहमदी थे तो आपसे छुपाई गई और जब आपने अहमदियत छोड़ी तो वो आपको तो आयत जो है ना वो मिल गई आपने वो ढूंढ ली तो क्या प्यारे भाई आप वो हमें आयत एक दो दे सकते हैं। ये तो गल किधर हो गई है इंदे दी जान वाली अकबर भाई नहीं इधर नहीं पहले मस्जिद तो मुकना उधर मुकाने उधर ये मुकना ही नहीं ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਯਾਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਮਾਤ अहमदिया ਛੱਡੀ जी हौसला ही बहुत हौसला है मेरे अंदर देखना मैं 1 घंटे तक यहाँ पर हौसला करके बैठूंगा और आपके मुंह से कुरान करीम की आयत नहीं निकलेगी। हमने नहीं अभी बयान नहीं करनी अभी कब बयान करनी है क़यामत वाले दिन या कब्र में जाकर फरिश्तों के सामने क्या करते रहो आपस अपने दलाइल खुद बनाओ खुद कहो किसी जीत गए तो दें ना आप दलाइल आप दें हम हार गए भाई दलाइल दें आप हमें हराएं हम खुद नहीं बताते आप हमें हराएं बिस्मिल्लाह करें वो दलाइल दें। मोहम्मद ज़िशान भाई ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100-500 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢੋ ਪੈਪ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੈਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 500 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਪ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੈਪਨ ਲੈ हाँ तो इतने तो नहीं ना असी वैपन फड़िया ज़िशान साहब वैपन तो बगैर जो है ना वो हमें हवाला दें प्यारे भाई वो कौन सी आयात हैं जिससे आपको पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और मिर्ज़ा साहब ने गलत बयान किया। पहली बात है माइक उतरा हुआ है आपके ज्यादा जो माइक आप बार बार लगा के तो ऊपर आके तो आप अपनी बातों के अंदर वो दलाइल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना ये बनते नहीं आपके
چلیں پیارے आपको भाई सिर्फ जो इतने आपके से बात बनते करने की हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने हरकत की है, आपने उस लड़के की जो लाइफ है उसको डेंजर्स के अंदर डाला है, ठीक है सिर्फ अपनी अनाओं को तस्कीन देने के लिए। ठीक है आप लोग एक मिनट सुभान भाई सारे भाई खामोश तो रहे। अच्छा जिशान भाई हो गया वो हो गया वो हम उनसे ना पूछेंगे कि आपने क्यों किया। मान आप से गलती हुई है, मैंने की है वो गलती, मैं गया मैं था। आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जितने भी लोगों ने की है, आप कहते हैं कौन से लोगों ने की है? भाई जिन लोगों ने भी की है, किन लोगों ने की है हमें नहीं पता। आप अपनी बात करें यहाँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बताएं कौन से दलाइल हैं आपके पास ईसा अलैहिस्सलाम के हयात के। खत्म नबूवत को मानते हैं आप तो वो दलील दे दें, कोई दलील दें हमें, आपका पता चले कि आपने जमात अहमदिया जो छोड़ी है इस बुनियाद पर छोड़ी है। आप झूठ बोल रहे हैं, मुरब्बी साहब उसको कहते रहे कि ना जाए, वो खुद गया है उसने। यार खत्म नबूवत भाई वो बात छोड़ दे, इसने उसी पर तरफ जाना है। बात ये है जिशान साहब लेके शाम तक गुफ्तगू चल रही है। अच्छा चल गई ना, अब आप अपना बताएं, वो छोड़े उनसे हम बात करेंगे। बड़े से बड़ी चीजें पेश करती हैं और आप आके सारी की सारी बात का बेड़ा हाँ ठीक है सुने जिशान साहब, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी जिशान साहब सुने तो सही, आपकी जो है ना टेप रिकॉर्डर चल गया है, मुझे पता है आपकी तारें शारें शार्ट हो गई हैं, दलील जो मांग ली है। बात यह है कि जो कुछ भी हुआ शार्ट हुई है ना, आप उन तारों को संभाल के बैठें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात जस्ट ये है कि आप लोगों ने जो हरकत की है बिल्कुल गलत है। चले मैं आपके घर नहीं जाऊंगा इंदा। अब सुने बात यह है कि आपने जमात अहमदिया छोड़ी, आप मुर्तद हो गए। आप जो मुर्तद हुए हैं, आपने जो इस्लाम में हकीकी इस्लाम को छोड़ा है, आपने कुरान की तालीमात को छोड़ा है, आपने किस बुनियाद पर छोड़ा? आपके पास कौन सी दलील आई? आपको किस फरिश्ते ने आकर बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? वो दलील हमें बता दें भाई। वही दलील वो राना साहब भी वहाँ पर लेने गए थे, वही हम आपसे यहाँ से वहाँ तो वो गलती कर दी उन्होंने, जुल्म कर दिया, बर्बरियत कर दी, रॉकेट लॉन्चर लेकर आपके घर में घुस गए। ठीक है, अब प्यारे भाई मैं तो कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर नहीं घुसा, मैं तो कोई जुल्म बर्बरियत नहीं कर रहा आपके साथ, मैं कोई वेपन लेकर नहीं बैठा। आपसे सिर्फ एक आजिज़ाना सा सवाल है कि आप मुर्तद हुए हैं। जब आप मुर्तद हुए हैं तो कुरान की तालीमात को मेरे मुताबिक तो आपने छोड़ा है। आपके पास कौन सी दलील है जिसकी बुनियाद पर आप जमात अहमदिया को गलत कहते हैं कि जमात अहमदिया का ये जो कीता है हयात ईसा का कि वो फौत हो चुके हैं, तो इसकी क्या आपके पास दलील है? ख़त्म नबूवत की कौन सी आपने ऐसी दलील ढूंढ ली है जिसकी बुनियाद पर आपने ये फ़ैसला किया? तो प्यारे भाई यहाँ पर 70-80 बंदे सुन रहे हैं, उनके सामने उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं। हम आपके साथ हो जाएंगे, हम राना साहब को अभी कहेंगे कि वो मुर्तद है, काफिर है, आप वो दलील दें। शाबाश। चलें आप ऐसे कह रहे हैं, राना साहब नहीं, राशिद साहब ने, जो ये सब राना ही है ना, वो राना राशिद साहब। जो ये साहब देखें, आप कालू साहब की आप इस बात से एग्री करते हैं कि कालू साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि वही दलील जो उनसे मांगेगी आपसे मांगी जा रही है, आप दलील दे दें, हमारा मुतालबा पूरा कर दे। उस वक्त में हमारा मुतालबा दलील थी, अभी भी मुतालबा दलील है। सुन ले ये दलील देने लगे हैं जी। बिस्मिल्लाह, कौन आयत खोलूं कुरान करीम की? कौन सी आयत? सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो, कुरान का नाम सुन के कहता है ओहो हो। प्यारे भाई मैं खोलने लगा हूँ कुरान करीम जी। आयत सूरह बकरा की, आपने भी इन पर्सन देनी है, सूरह बकरा करके तो वो भी बता दें। सूरह बकरा खोलूं? कुरान नहीं खोलना, मैं हाफिज़ कुरान बैठा, मैं पढ़ देंगे हवाला। सूरह बकरा खोले हाफिज़ साहब, सूरह बकरा की तैयारी आपके पास है, आपको मुकम्मल याद है ना सूरह बकरा? सूरह निसा है, मैं सुन नहीं पा रहा। सूरह निसा, सूरत आल इमरान का नाम ले रहे हैं आप जिशान भाई? सूरत आल इमरान तो नहीं कहा यार, गौर से सुनना, कौन सी सूरत इनके मुंह से निकलती है? सूरत अल अराफ, हाँ, कौन सी? जिशान भाई यार गौर से सुनना है, मैं कम सुनता हूँ मुर्तदीन की आवाज, तो आपने गौर से सुनना है। शायद इनके मुंह से वो सूरह निसा कह रहे हैं लोग कुछ नीचे। कौन सी सूरत है जिशान भाई? वो फिर से बता दें, आपने अभी नाम लिया। अगर आपने सुनने का हौसला है ना, हाँ वो ही सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह। मुबशर कालू साहब ना बने, हम मुबशर कालू साहब आप जो है ना, हम उनके जूते भी नहीं बनते, आप बेफिक्र रहें। आप उनके जूते के बराबर भी नहीं है, बेशक हम उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। अभी आपने नाम लिया सूरत अल नाम, सूरत अल नाम का है आपने, सूरत अल मोमिनून। इमरान भाई मुझे तो अल अराफ सुनाई दी है। मुबशर कालू साहब को पूछा हो जाके सूरत अल अराफ जी। जिशान भाई मुबशर कालू साहब को फिर से बता दें। मुबशर कालू को पूछा हो जाके
ਸੂਰਤ ਸਾਫ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ ਲਵੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ सूरज साफ का नाम लिया कालू साहब दूसरी तरफ है और जिशान भाई आए तो दें अब इधर उधर की ना मारें, वो हो गया जो होना था, उस पर हम बात करेंगे दोबारा। सुन लें, मान लें आप लोगों ने गलती की, हम बात आगे बढ़ा लेते। कौन सी गलती की है? कोई रिश्ता लेकर चले गए हैं भाई आपके घर? हाँ हमसे सुन ले जी, चले जी हम मान लेते हैं जी। सुने जो ये भाई हम मानते, बेशक हमसे गलती हुई है, बेशक हमसे गलती हुई है, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं बताता हूँ, वो मिसाल देने लगा हूँ ना, मिसाल देने लगा हूँ, आप सुन लें। वो ना जंगल में शेर और वो ना गधे के साथ चीते की ना वो बहस शुरू होगी। तो वो गधे को कह रहा था ना, चीता कह रहा था आसमान नीला है, तो वो गधा कह रहा था नहीं येलो है। तो उनके ना वो काफ़ी महस मुबासा हुआ। तो जनाब वो ना बात बादशाह सलामत तक पहुंची। तो बादशाह सलामत के पास जब बात पहुंची तो उन्होंने चीते को जो है ना वो सज़ा कर दी। तो चीते ने कहा भाई ये सज़ा गधे से तुम बहस कर रहे थे, तुम्हारी सज़ा बनती है, तुम्हारी सज़ा बनती है, तुम गधे को दलीलें दे रहे थे। हमारी गलती, हमारी गलती, हम गलती मान गए। अब आप जो है ना वो प्यारे भाई, हम अपनी गलती मान गए। हम राणा साहब को जरूर कहेंगे कि राणा साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको जो है ना सोचना चाहिए। राणा साहब की सजा बनती है, राणा साहब की बनती है सजा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा अली अकबर भाई, राणा राशिद हो रहे, ये दूसरे राशिद साहब गए सी भाईजान। ठीक है, सॉरी मैं राणा राशिद साहब की गल किसे गल का नहीं पता, उन्हें सिर्फ पॉकेट बुक फड़ी रुपया। ठीक है, पाकेट बुक तो तुही तो छड्डो ना। देखो जिशान भाई, तुसी तो नहीं ना पाकेट बुक फड़ी, हौसला रखा करें यार, तुसी तो नहीं ना पाकेट बुक फड़ी। तुसी कुरान करीम क्यों छड़ के बैठे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਤਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਾਇਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਾੜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਲੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾੜ ਦੇ, ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਾਲੂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। रिकॉर्ड करके ना चला, जज़ा बिल्कुल रिकॉर्ड करके चढ़ा दें जहाँ पर आपने चढ़ाना है उसको चढ़ा दें। जिशान भाई अब प्यारे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पैंटा, बहुत चले शुक्रिया। अब जिशान भाई अब आयत पेश करेंगे आप कुरान करीम की। वो कौन सी आयात हैं जिसकी बुनियाद पर आपने ये मान लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? वो कुरान करीम की प्यारे भाई अब आयत दे दें। जी शान साहब, हेलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार कालू भाई मेरी गल सुनो, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। जिशान भाई